students, well-equipped facilities. I'm happy, in fact, to be here in the center this morning. Forget about the good words that Sir has said. It's just a custom. The test of pudding is eating. All are comfortable in English? किसी को हिंदी की जरूरत है? तो मुझे जरूरत है। मैं बीच में आप सभी विद्वजनों और गुणीजनों को नमस्कार करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कहने के लिए चीज़ें in a mutual platform and certain things that definitely I hint you that as the new teachers of the coming age, you must imbibe. I am conscious of your time. You have taken time out of your regular academic schedules. And therefore the endeavor would be to give you something. Be with me for 1.5 hours with open mind and feel free to speak out, but once we conclude the session, I'll have maybe 20-25 minutes time for the discussion. You can note down the questions that come to you. Now, to connect with the theme of the workshop, although I am supposed to speak on skills, entrepreneurial development and employability, opportunities and challenges. That is my topic. If all of you can see. Is it visible to all of you? Yes, sir. So I am given the task to speak on this, but let me connect it to the theme, which is the new education policy. And I have just now learned that state of Uttar Pradesh is ahead of the rest of India in implementing this new education policy. We at the Central University, namely Banaras University, are still figuring out how to go ahead with the new education policy. Okay? So certain features that I'll just quickly run through for you to connect the things. The first education policy came in 68. In fact, the work started in 64 and 68 the policy was released. Second came in 86 after a gap of 18 years. And third full-fledged has come in 2020. Maybe you are familiar. Yesterday also I suppose this has been talked about after a gap of 34 years. In between in 1992 we had a small tweaking here and there of the 86 policy. This policy document is important because for the first time it was not chaired by an educationist. It was chaired by a very illustrious scientist, K. Kasturirangan. And scientists are more focused, precise to the task that they are assigned. Now, let me tell you honestly that all policy documents have been equally good. All policy documents have been equally good. The devil is in implementation. This policy 2020 is a document that has been prepared with widest consultation possible, inviting inputs from all stakeholders who may have some stake in the betterment of the educational process in the country. Now, from the entrepreneurial perspective, let me put before you some salient features. Policy has many good things, many questionable things also, in the sense that how to implement those ideas. Okay? But in the perspective of employability and entrepreneurship, there are certain things that are worth noting. The focus is very much there on honing the vocational skills. For example, the director talked about, and this is the case with most of the academicians of this generation. Okay? I am at least one generation ahead of what he has talked about. Right?
So we also had the same difficulty and same easy access in say making PPT and handling the laptop. So I had a daughter, she was elder, and a son who was 5 years younger. Now the daughter has now moved to New York and son is in his own business. Nobody has time for me. So I was very happy not learning anything. देख लो बच्चों जरा इसको बना दो, very good, अच्छे से बन गया. Now they have left the nest, they are on their own. So with empty nest, if you have to do something like this, either you learn yourself or you get dependent on somebody. So learning yourself is the better option. And that way you are fortunate. I think most of you of this generation are comfortable. Right? So focus on vocational skill is one thing. Lok Vidya is another very important. Where not only focused on learning the local practices which are useful, but also some kind of what we call internship to be put in with those experts, so that you are definitely able to take full advantage and you are able to document the Lok Vidya. The difficulty with Lok Vidya is that there are many form of knowledge existing, which we call the undocumented source of knowledge, which is with the people. And culturally, we did not have the tradition or fashion of documenting those things. So now the focus on Lok Vidya and internship will help us to document and formalize those knowledges so that others may also get benefited. The third thing is setting up institution like PARAK, which is National Center for Performance Assessment Review and Assessment of Knowledge for Holistic Development. This is important. Education has been a linear phenomenon, especially for those who are coming for the first time, who are the first and second generation learners. For them, the education is a linear phenomenon. Focus on 3 hours only and focus exclusively on academic activities. लोग यहाँ तक भी सोचते हैं कि बच्चा खेलने में जाएगा तो बिगड़ जाएगा. So this leads to not a holistic development of the personality of child. So this point has been taken care of. Then another good thing is academic credit bank. So somebody, suppose he passed 9th or 11th and then there is a gap of 4 or 5 years. Then what will happen? You will have to do again both years, 11th and 12th again. So this lacuna has been taken care of. There is an academic credit bank, especially for the higher education, which I can say definitely yes. And whatever credit you have, like your bank deposit, that gets carried through. And whenever you want to add few credits, you are free to add. And when the total number of credits are sufficient for a particular degree or diploma, you will get that degree or diploma. So that flexi scheme with credit bank is a good thing. Then another very important feature, young ones are not into the continuous stream of learning. They want to take time off to experiment with their ideas, with some startup, with some idea. Okay? So this is a good thing, break in the academic career, that in our times was considered to be very, very bad and invited a lot of questions. This is now formally permitted in the new education policy. Okay? So if you lose 2 years working with some startup, this break is mentioned in your mark sheet as the provision says in the new education policy, and it will be treated as if not a gap in your education, but 2 years time you have devoted to some startup, XYZ. So this is something very, very good. Then there is special impetus on entrepreneurship and startup, which is the topic of the day. This policy especially focuses on promoting the entrepreneurship. Because government cannot absorb anybody, formal sectors cannot absorb anybody. There is a limit to it. Therefore, entrepreneurship is the only option available for us to move into a big way and create more and more entrepreneurial infrastructure and ventures so that people get gainfully employed. Okay? And then similarly, we have another initiative called National Commission for
integration of vocational education. Vocational education has different shades and shapes in different states. So this policy provides for integrating that framework so that we can propagate the good things of one state to other, and we can weed out, we can take out the limited or not so good things in practice that comes to our notice. So propagating the best practices among all participants and weeding out not so good practices from the places where from it is required to weed out. Okay? And another very important thing that I'm sure you all are familiar, lateral entry is permitted now. And exit is also permitted. So for example, if graduation is a 3-year course or 4-year course, then after 2 years you exit, join a startup, your credits will remain safe in the bank, and then whenever you feel like, you can join again. So you can enter laterally and you can add up whatever the deficit credits you have, you can have that. Another good thing is multiple exit points are available. So everybody is not into studying the things. It is a very peculiar phenomenon of this state UP only, that for no work people are interested to pursue education. BA किया, फिर MA किया, फिर दूसरे सब्जेक्ट में MA किया, फिर BEd किया, फिर MAd किया, फिर लाइब्रेरी साइंस कर लिया, फिर जर्नलिज्म कर लिया, फिर LLB में एडमिशन ले लिया, कैंपस छोड़ना ही नहीं है. For whatsoever reasons I had mentioned. Okay? So here, exit provisions are also there. आप BA Part 1 करके चाहें तो आप exit कर लीजिए, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, एडवांस सर्टिफिकेट इन एंथ्रोपोलॉजी मिल जाएगा. अब BA Part 2 करके एग्जिट कर लीजिए, आपको PG डिप्लोमा मिल जाएगा. BA Part 3 कर लीजिए, I mean आपको 4 years का कर दिया, तो you complete the 4 years and you get the degree. So multiple exit points have also been provided for, with each exit offering you some certificate. So that means essentially it is a very student-centric policy, employment and entrepreneurship promoting policy. Alright? So far so good? Yes. Now we move to the currency. Pay your attention. Whenever we design a policy, we derive our inspiration from some code. उसको आप कोर कहिए, उसको फेथ कहिए, उसको बिलीव कहिए, तो फर्क नहीं पड़ता. Alright? So this new education policy derives its inspiration, or it is anchored into the preamble of the Constitution, which is the very soul of the Constitution. Policy कहती है, higher education plays an extremely important role in promoting human as well as societal well-being, and in developing India as envisioned in its constitution, a democratic, just, socially conscious, cultured, humane nation, upholding liberty, equality, fraternity and justice for all. अब इसमें से हम एक चीज निकाल रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्वेश्चन कर रहे हैं. I am not questioning the constitution, neither anchoring of the new education policy into the preamble of the constitution, but I am questioning something that comes to my mind and I am sharing with you. यही हमारा पर्पस है. लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस सबको देना है और कल्चर्ड ह्यूमन सोसाइटी बनाना है. That is the target. To serve this target, we have new education policy 2020. Hope I am clear. ठीक है ना? ठीक है. अब देखिए, if we want, as if you recall the earlier slide,
as if our problem is of justice, equality, fraternity and liberty. यही ना वैल्यूज जिनको हम एम कर रहे हैं। लेकिन मेरे लेक्चर का प्रॉब्लम यह है कि प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस which is missing in this society. These are important values. लेकिन इसमें हम जो खोज रहे हैं हमको दिख नहीं रहा। एक रोटी हमारे पास है, आप कहते हैं रोटी जस्ट ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो, सबको जब चाहे तब डिस्ट्रीब्यूट हो, वो सब तो बात ठीक है, लेकिन रोटी और बड़ी से बड़ी हो ताकि हर आदमी का शेयर बढ़े, इसके बारे में कोई बात इसमें नहीं। मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ आपको? आज की समस्या हमारी क्या है, उसको चाहे आप बेरोजगारी कहिए, चाहे उसको भूखमरी कहिए, इट बिकम्स वेरी क्रूड वर्ड, लेकिन वो तो हो जाता है, जाने अनजाने वही बात होगी। भूखमरी तो खाली पेट की बात थोड़ी, हमारी जो भी इच्छा है वो अगर नहीं पूरी होती तो उसके लिए हम भूखे हैं, भूखमरी ही है। पेट से जोड़ना खाली एक बड़ा क्रूड फॉर्म है। तो बेरोजगारी भी है, भूखमरी भी है और सब कुछ है, लेकिन जिसमें हम इस पॉलिसी को एंकर कर रहे हैं वो एंकर हमारे इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आखिर स्लाइड हमारी इस बात से फिर जोड़ेगी, आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। जरूरत, नीड ऑफ द डे इज टू क्रिएट ए प्रॉस्परस एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी विथ ऑल दीज एट्रिब्यूट्स, विथ ऑल दीज एट्रिब्यूट्स। लेकिन इसमें कहीं प्रॉस्पेरिटी या प्रोग्रेस मेंशन तो नहीं है। मैं खोज तो रहा हूं, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा हो तो बताइए। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं इसके लिए, ना मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का लिमिटेशन निकाल रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि पॉलिसी विच इज एंकर्ड एट ए प्लेस दैट इज नॉट डायरेक्टेड टू फर्दरेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, आई एम डाउटफुल विल सर्व द पर्पस। और इसके लिए मैं कुछ बातें आपसे शेयर, क्योंकि आप सभी टीचर्स हैं, I am taking you to the ancient Indian wisdom, and in fact the world over, एक अंग्रेजी में कहावत है, I thank thee, I trust thee, hope I am audible without mic also. Yes. Is it okay? Yes. Yes. Okay. I thank thee, I trust thee, my good right hand. इसका मतलब पुरुषार्थ से प्रॉस्पेरिटी को क्रिएट करने के लिए हम अपने दाहिने हाथ पर विश्वास करते हैं और उसी को धन्यवाद। तो प्रॉस्पेरिटी को वहां भी रिकॉग्नाइज किया, वेस्टर्न थिंकिंग में भी। ग्रेट तमिल पोएट तिरुवल्लुवर सेज almost 2000 years back, create wealth through intense efforts, good right hand. There can be no better weapon to destroy the enemy's ego. Those enemies could be individuals, communities, groups, or nations. In the Committee of Nations, if you want to stand up with your head held high, you have to create wealth. तो जो पॉलिसी की एंकरिंग है वो डायरेक्टली हमको इस चीज को तो एड्रेस नहीं कर रही, वो तो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी सब की बात तो कह रही है, लेकिन चूंकि जब आपका लेक्चर देने की बात हुई तो मैं खोजा कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल, इक्वालिटी, ये सब तो प्रॉस्पेरिटी को एड्रेस करते हैं, तो ये तो कहीं उसकी बात नहीं। हमारे यहाँ इस बात को कहा गया, बड़े ध्यान देकर कहा गया, आप इसको समझेंगे। अजरा मरवत प्राज्ञ विद्याम अर्थम च चिंतये गृहीतैव केशेषु वृत्तिना धर्ममाचरेत्। कोई आपस में कोई संस्कृत बात जो हमारा काम आसान करे। इसका मतलब यह है कि you must pursue the wealth and knowledge as if you are never going to die. अंबानी इतना बड़ा रईस है दुनिया का, लेकिन फिर वो पैसा पैसा जोड़ते ही जा रहा है। उसको अपने लिए कितना बड़ा पेट उसका है, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये शास्त्र कहता है, हमारी थिंकिंग कहती है कि अजर अमर, जैसे आप कभी नहीं मरेंगे, न कभी बूढ़े होंगे, अजर मतलब कभी बूढ़े नहीं होंगे, और अमर मतलब कोई मौत आपको नहीं आएगी। ये ख्याल दिल में रख के विद्याम अर्थम च चिंतये, यू मस्ट कल्टिवेट knowledge
गृहीत इव केशेषु, जैसे मौत ने आपका चुंडी पकड़ रखी हो, ये सोच करके धर्म मार्चते। धर्म का मतलब सेंस ऑफ ड्यूटी, धर्म का मतलब रिलीजन से आने, जो आपकी सेंस ऑफ ड्यूटी है, दैट यू मस्ट परफॉर्म ऑलवेज अलर्ट एज इफ एनी मोमेंट यू आर गोइंग टू डाई। तो धर्म से आपका विपथन कभी ना हो, और विद्या और अर्थ के उपार्जन से भी आपका अनमनापन कभी ना हो। इसके उलट कोई अगर वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ के दोष लगाता है तो उसमें समझ नहीं लगाना, कोई लगा सकता है, लेकिन समझ नहीं डेवलप। इसमें से एक पार्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा, मैं देख रहा हूँ। ये जो डिस्प्ले नहीं हो रहा है वो कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। द इमेज कैन बी डिस्प्लेड, ये कह रहा है, क्योंकि वो फोटो करके पेस्ट की गई है, तो उसमें कुछ है नहीं। उसमें वही है, मैं आपको पढ़ देता हूँ, वही है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस। इधर हमने प्रीएम्बल रखा है और इधर हमने उसको कंपेयर किया है ओरिएंटल विजडम से। ओरिएंटल विजडम जो मैं कहता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे से अनदेखा हो गए, ये बात नहीं। We are not the sole claimant of this wisdom. There are many people, many civilizations, but we are certainly on the forefront as repositories of those wisdom. इतनी सी बात है। तो ये जो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सब जस्टिस ये कह रहा है, सारा डिस्ट्रीब्यूटिव एस्पेक्ट में है। जब ये देखिए, ये गीता के आखिरी अध्याय का आखिरी श्लोक है, 78वां श्लोक है अर्जुन अध्याय का। ये क्या कहता है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो दुर्योधन। कृष्ण और अर्जुन जब दोनों ही नहीं, तो वहां पे चार चीजें होंगी। तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति। देयर विल बी साउंड एंड सेम पॉलिसी, जो पहला पॉइंट होगा। कुछ इसमें पूरा डिस्प्ले नहीं आ रहा। ध्रुवा नीति जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, साउंड एंड सेम पॉलिसी होगी, उसके वजह से भूति, भूति का मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट, गमन के अर्थ में था, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। तो वो साउंड एंड सेम पॉलिसी होगी। एज ए रिजल्ट वी हैव होलिस्टिक डेवलपमेंट, एज ए रिजल्ट वी हैव विजय। विजय का मतलब सक्सेस, सक्सेस होगी इन व्हाटएवर एंडेवर यू परस्यू, और फाइनली तत्र श्री प्रॉस्पेरिटी। कब होगी? जब when secular and sacred are combined together, when there is a marriage between secular and sacred are ephemeral and eternal. ephemeral मतलब जो नाशवान है, eternal मतलब जो शाश्वत है। तो ये तो नाशवान वैल्यू है, वर्ल्डली अपलिफ्टमेंट नाशवान है, और जब इसको आप स्पिरिचुअल उससे मिला देते हैं, तब जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो चार चीजें अपने आप आएंगी। तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति। So good policy is one that leads to holistic development, which in turn leads to success and finally leads to prosperity. तो आज का जो हमारा विषय है वो इसी प्रॉस्पेरिटी को एड्रेस करता है, जिसको कि एनईपी में हम पाते हैं, जिसकी एंकरिंग जो थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि एनईपी की एंकरिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीएम्बल में है। प्रीएम्बल का सारा जोर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, सबको सब चीज बराबर मिले, लेकिन जो मिलना है वो बढ़े, आपस में उसी में बंदर बांट ना हो, वो बढ़े, तब सबका पेट भरेगा, जिसको हम कहते हैं प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। हमारा फोकस उसके बाद ये यूजफुल गवर्नमेंट, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस। सब भूखे के लिए न कोई लिबर्टी है, न कोई इक्वालिटी है, न जस्टिस है, कोई डेमोक्रेटिक राइट है। वो भूखिता क्यों ना करो, भूखा बड़े सेंस में लेना, खाली पेट सेंस में। So this is one thing that I place before you to ponder over as one of the serious anchoring limitations of the NEP.
explicit focus on prosperity and progress. अब इसके बाद जब हम बात करते हैं कि देश को संपन्न बनाना है, entrepreneurship is the solution, this that, तो लगता है कि हम ऐसे ही भूखे नंगे हैं. India has been a poor country for time immemorial, which is not true. तो हम आपको रंगीन ख्यालों में नहीं ले जाएंगे कि पास्ट में महाभारत के टाइम में था वो था. हम आपको मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं. Many of you may be familiar, अगर कोई आपके से इकोनॉमिक्स पर हैं, वेरी गुड. तो ये जाता होंगे, लेकिन आप सब इसको अप्रिशिएट करेंगे. हम 1600 से बात कर रहे हैं. 1600 is the time of Akbar. Akbar began to be more precise, Jahangir. When the representative of the East India Company, Sir Thomas Roe, visited India with the request to permit the company to trade with India. अगर हिस्ट्री वाले होंगे तो उनको पता होगा, कोई ना इसमें मेडिवल हिस्ट्री अगर होंगे तो ये अजमेर में दरगाह के बगल में जहांगीर का फोर्ट है, बगल में दरगाह के फोर्ट है, और उसी अजमेर के फोर्ट में वो रॉयल चार्टर जिसको फरमान बोलते हैं, वो सर थॉमस रो ने जहांगीर को प्रेजेंट ट्रेड विद इंडिया. तो 1600 में इंडिया की क्या पोजीशन थी आप देखिए. ये ब्रिटेन जो है 1.8% ऑफ टोटल जीडीपी था. ब्रिटेन हैड ओनली 1.8% ऑफ टोटल जीडीपी. हम ये आपको छोड़ जाएंगे, है ना, ये हम ले नहीं जाएंगे. हम उस तरह के टीचर नहीं कि बस्ता बांध के ले जाएंगे, आप छोड़ देंगे, ठीक है. Western Europe taken together had 20% of the world GDP. China had a very large share, 29%. India and China both are very ancient civilizations and vitally linked also. India in 1600 had 22.5% share of the world GDP. तो हम हमेशा तो भूखे नंगे नहीं थे. आखिर की बात करें तो दुनिया के जीडीपी का 22.5% हमारा हिस्सा था. और ब्रिटेन जिसने कहा गया कि सूरज नहीं जिसके राज में मस्त था, उसका उस समय लेस देन 2% हिस्सा. फिर उसके 100 साल बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे फैलाना शुरू किया अपना काम, तो थोड़ा ब्रिटेन का शेयर बढ़ गया, लगभग 3% हो गया. वेस्टर्न यूरोप टेकन टुगेदर स्लाइटली इंक्रीज 22.4%. China again was slightly brought down 22%. और इंडिया का शेयर बढ़ गया. इंडिया 24% हो गया, क्योंकि इंडिया ट्रेड करने लगा डायरेक्टली. कंपनी से परमिशन मिल गई, तो एक जो टेरिटरी जो थोड़ा मोड़ा उसके एक्सेस में था वो ज्यादा ट्रेड एक्सेस में हो गया, तो हमारा 22 से बढ़ के 24 हो गया. ठीक है, ये 1700 की बात. अब हमारी किस्मत खराब हुई कब से? 1757 से, when Battle of Plassey was fought and the revenue rights were ceded to the East India Company. ठीक है, जिसमें बंगाल का नवाब जो हार गया, सब आपसे जानते हैं, वीजा वाला चक्कर है सब. और कंपनी को ये अख्तियार दे दिया गया कि आप रेवेन्यू माल गुजारी आप वसूल सकते. उसके बाद से उनका असेंडेंस हुआ है. 1870 में, उसके 100 साल बाद फिर लगभग 100 साल बाद 1857 में गदर हो गया. We became directly subject of the Queen. 100 साल कंपनी ने लूटपाट की, सब कुछ किया, और उसके बाद गदर हो गया. तो कंपनी के सब्जेक्ट होने के बाद भी पोजीशन क्या है कि इंडिया है 12%, मतलब 250 साल का डायरेक्ट प्लंडर है बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. उस डायरेक्ट प्लंडर के बावजूद we had about 12.2% of the share in world GDP. आज की तारीख में हमारा कितना शेयर है? लगभग 3%. अभी पैंडेमिक का ले तो और कम हो जाएगा. ये 17 का फिगर जो प्रिसाइज रिपोर्ट कर रहा हूँ, 3.28%. अभी पैंडेमिक की वजह से हमारा साइज श्रिंक कर गया है, वर्ल्ड जीडीपी भी श्रिंक कर गया है. तो इस प्रोपोर्शन में मोर और लेस इसी के आसपास बैठेगा. तो देखिए हम 24% से 3% पे हैं. दैट मीन्स
during the period of what we call the period of, I should say, period when the country was not free, गुलाम रहे, चाहे मुगलों के गुलाम रहे, चाहे गुलाम के गुलाम रहे, चाहे अंग्रेजों के गुलाम रहे, चाहे किसी कंपनी के गुलाम रहे, उसमें भी हमारा शेयर 22-24-12% आज हम 3% और 3% पे अभी है। When we started post freedom तो हमारा 1% से कम। That means we are now again in the process of recovery। तो जैसे किसी वजह से शेयर का बच्चा लंगड़ा हो जाता है ना, किसी वजह से, इकोसिस्टम की वजह से, लेकिन फिर जब वो पीछे मुड़ के देखता है कि नहीं हमारे पूर्वज तो वाकई शेर थे, तो फिर शिकार करने लगे। तो वो जो लॉन्च की पोजीशन है वो इंडिया की आज है। We have again gained that confidence to leap forward, to move ahead, provided the ecosystem supports. तो वो जल्दी हम जैसे वो 5 ट्रिलियन एम कर रहे हैं, तो 5 ट्रिलियन कर रहे हैं तो हमारा कभी 10% के आसपास शेयर होता है और 5 से 10 होने में देर नहीं लगती। तो जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ना, तो इट इज अ सेल्फ प्रोपेलिंग प्रोसेस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, let us be conscious of the fact that India has never been a poor country in history, whether ancient or medical। और ये बेरोजगारी का वर्ड ही इसीलिए, आप तो संस्कृत लिटरेचर के आदमी हैं, तो संस्कृत लिटरेचर में नहीं बेरोजगारी का वर्ड नहीं। हस्तों में भगवान, ऋग्वेद कहता है मेरा हाथ ही मेरा भगवान है, उसी को हम भोजपुरी में कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ। तो ये बेरोजगारी जो है ये ब्रिटिश पीरियड का फिनोमेनन है, जब हमने आर्टिजन्स को तो मजबूर कर दिया, हाथ पर काट लिए उनके, वो मजदूर बना दिए, मजदूरी करने को मजबूर हो गए, और उसके बाद पढ़े लिखे लोगों को लड़की मिलने लगी, तादाद इतनी ज़्यादा हो गई। मैकाले का भी सिस्टम था कि we need the brown people who are Indian in looks and Western in their mind, ताकि उनको अच्छे से सर्व कर सके। They had their own concept, education policy that was brought in 1835, the history का आपको तो मैकाले का जो ड्राफ्ट था वो एक्सेप्ट कर गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1 साल बाद उसको एक्सेप्ट कर दिया। तो हम ऐसे थे नहीं, तो जैसे थे वैसे हो सकते हैं कि नहीं, उससे अलग नहीं होना है। हम 10% पे जाएं, 12% पे जाएं, 20% 24% पे जाएं, and then we must have share of the world economy proportionate to our population। अगर दुनिया की हमारी पॉपुलेशन आज 7 अरब पॉपुलेशन है, 7 अरब में हम 1.5 अरब हैं, तो उतना हमारा जीडीपी में भी शेयर होना चाहिए, तब तो हम कहेंगे वी आर ए प्रॉस्परस एंड प्रोग्रेसिव कंट्री। नहीं तो ऐसे ही जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी के नाम पे घसुट मची रहेगी, पेट नहीं किसी का। So now with this background, that we through entrepreneurship are not trying to chart out a new course, rather we are trying to regain the lost ground। जैसे ऐसा होता है कि आप जमींदार हैं लेकिन आपकी जमीन गिरवी रखी हुई है, तो आपको जमीन खरीदना नहीं, आपको क्या करना है, गिरवी छुड़ाना है। गिरवी छुड़ाने के 2 रास्ते हैं, या तो जिसके यहाँ गिरवी रखी है उसी को आप छुड़ा दीजिए make you free, और दूसरा ये है कि you earn hard, repay the debt and reclaim your asset, which is more democratic and genuine। तो वही काम हमको करना है, हमको नया कुछ नहीं करना है। हम तो अमीर थे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं, अमीर नहीं होते तो 7 समुद्र पार से ईस्ट इंडिया कंपनी परमिशन मांगने क्यों आती? तो ये पहले तो विश्वास अपने में जगा दीजिए, कुछ बात है तो हमको बता दीजिए। That disturbs। We were so good at in the ancient time। जी एक मिनट, let me listen। और अब वहीं पे पहुंचना है कि हम लोग इतने रिच थे, इतने प्रॉस्पर थे, और फिर से वहाँ पहुंचना है। नहीं, पैसिव ख्याल से नहीं कि हम नवाब थे, हमको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये थे।
तब आप वो कर पाएंगे। ये रिक्लेमेशन की जो जर्नी है ना, ये कॉन्फिडेंस से शुरू होती है। जैसे कोई बुरा न माने, तो एक राजस्थान में एक कहावत है, वहाँ पे पुराने जमाने की कहावत है, उसको ऐसे मत लीजिएगा, डोंट फील फ्रंटेड, ये और टीचर्स उस हिसाब से शेयर कर रहे हैं, या अगर कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हैं बच्चों में, कि राठौर लोग होते हैं राजस्थान में, तो राठौर सब बेसिकली रूलिंग कम्युनिटी और फ्रॉम द रूलिंग कम्युनिटी, राजा नहीं तो राजपूत हैं, क्या सर्विस करते हैं और राजस्थान में बनिया जो है मारवाड़ी जो है बिजनेस क्लास में। तो दो लड़के थे, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे, तो एक मोटा तगड़ा लड़का था, दोनों में किसी बात पे जो है झगड़ा हो गया, तो जो मोटा तगड़ा लड़का था उसने दुबले पतले वाले को पटक दिया। ठीक है, उसके पास ज्यादा पटक दिया, तो जो क्लास के बच्चे थे वो बोले देखो देखो तो वो मारवाड़ी ने राठौर को पटक दिया, और जैसे ही उसने सुना कि मारवाड़ी है, वो तुरंत उछल के उसके पीठ पर सवार हो गया। ताकत आती है आपको अपने पास इंटीग्रली लिंक करने से, कि हम वही। ये किस्सा है, लेकिन किस्सा का एक मैसेज है। तो जब आपको पता चले कि आप भी राठौर रहे पुराने जमाने के, दुनिया का एक 5वां हिस्सा आपके उसमें था, कब से ज्यादा भी था, तो आपको कहना कि हम जो थे वो तो कम से कम हो जाए, इतना तो हम डिजर्व करते ही। With all skill, progress and influence, we must reclaim the territory that we have lost because of the historical reasons. बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उन कारणों में भी जाना है और उन कारणों को फिर एड्रेस करना है। Then we will be successfully in a position to reclaim the things, otherwise it may not be possible. तो अब इसके बाद हम आते हैं आपको उस पर फिर हम आपको लिंक कर रहे हैं उसी चीज से। विजिबल है स्लाइड सबको? मैक्सिमाइज ये यहाँ पे, ये तो मुझे जितना आता है तो इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो मुझे आता नहीं। इसमें तो मैक्सिमाइजेशन को दे रहा है कि क्या इसमें नहीं, बाहर से भी टच कर दी, यहाँ कर दी है। हम इसमें देख लें, इसमें कुछ है एक जस्ट आप देखिए सर, स्लाइड पर डबल देखिए, इसी पे डबल तो हम लोग पीछे जितना किताबें पढ़ते हैं सब वेस्टर्न है, दिमाग हम लोग खराब हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप दिस दैट, एम्प्लॉयमेंट, स्किल। हमारे यहाँ 3 मॉडल है प्रॉस्पेरिटी का, और इसमें अगर कोई और भी फेथ के हैं तो कल्चरली हम लोग लिंक्ड हैं, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स बात है। 3 मॉडल में देखिए, एक है स्वर्ग लोक। स्वर्ग का हम लोग ध्यान से आज तक बहुत सब कुछ वहाँ पे है ना, जो जो सोच सकते हैं वो सब कुछ है, और इसीलिए जो हमारे बुजुर्ग चले जाते हैं तो हम लोग कहते हैं वो स्वर्ग लोक हो गए, उनके आगे हम स्वर्गीय टाइटल लगा देते हैं, तो बहुत मजे में है। यहाँ तो तकलीफ में थे, अब मजे में है। तो एक स्वर्ग लोक का मॉडल है प्रॉस्पेरिटी का, एक शिव लोक का मॉडल है प्रॉस्पेरिटी का। हमको उसमें से देखना कि कौन सा ठीक है। प्रॉस्पेरिटी तो हमको चाहिए। तो स्वर्ग लोक के राजा हैं इंद्र, है स्वर्ग के राजा इंद्र, तो वहाँ बहुत सब कुछ है, अफराद में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ही इज द मोस्ट फ्राइटेंड पर्सन। कहीं कोई तपस्या करने लगे तो उनको लगता है कि हमारा सिंहासन, तुरंत वो अप्सरा भेजने लगते हैं। कहीं कोई दानव अपनी सेना तैयार करे तो उनको लगता है कि अब
अब हमारे पे चढ़ाई कर देगा तो तुरंत किसी को भेजते हैं भाई जाके पता लगा के आओ, है कि नहीं? तो एक तो वो मॉडल प्रॉस्पेरिटी का, जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी तो है, अबंडेंस इज देयर बट पीस इज मिसिंग। तो ये मॉडल हमको लगता है हम लोगों के लिए ठीक नहीं। वेयर प्रॉस्पेरिटी इज देयर, बहुत सारी फैमिलीज में भी ऐसा नहीं कि हम मैथोलॉजिकल बात करें, फैमिलीज में प्रॉस्पेरिटी है, 15 गाड़ियां हैं, एक छोटा बच्चा है उसके लिए भी एक गाड़ी ड्राइवर है, चॉकलेट लेने भी जाता है तो अपनी गाड़ी ड्राइवर से जाता है भजन देने। आप ही के शायद किस्सा रियल लाइफ स्टोरी, लेकिन पीस इज मिसिंग। दूसरा मॉडल है शिवलोक। शिवलोक में ऐसा कि दे हैव आउटग्रोन हंगर। कैलाश पे भूख प्यास किसी को परवाह नहीं, सब इतने इंटॉक्सिकेटेड हैं अपने में, मस्त हैं कि बगल में उनका बैल बैठा है, बगल में देवी जी का वाहन सिंह बैठा है, खतरा नहीं है। तो लायन इज ए प्रेडेटर एंड बुल इज द प्रे, लेकिन प्रे और प्रेडेटर का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों मस्त हैं, दोनों खुश हैं, अगल बगल बैठे हैं। उसी तरह से कार्तिकेय चलते हैं मोर पे, मोर खाता है सांप, सांप अपने गले में बैठे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और उसी तरह से सांप खाता है चूहा, सांप तो चूहा ही खाता है, गणेश जी का चूहा भी उनके पास है, शंकर जी का सांप भी है। तो दैट इज अ प्लेस वेयर पीपल हैव आउटग्रोन देयर हंगर एंड दे आर इन परस्यूट ऑफ हायर एशेलॉन्स ऑफ लाइफ। वो भी नॉन प्रैक्टिकल है, वो कैलाश शंकर भगवान को ही मुबारक हो, इस दुनिया में नहीं चलेगा। तो तीसरा जो मॉडल है वो वैकुंठ लोक का मॉडल है, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, वहाँ पे श्री है, लक्ष्मी जी तो शी इज द कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ लॉर्ड विष्णु, श्री है ही बराबर, प्रॉस्पेरिटी है, इम्पर्सनेट फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में बिल्कुल है, और ऐसे। और विष्णु जी का एक है कि अपने से ज्यादा वो अपने भक्त को देखते हैं। अगर कोई भी दुनिया में भूखा है तो नारायण का पेट नहीं भरेगा, है कि नहीं? जब एक साथ महाभारत में कहानी आती है, जो द्रौपदी के बर्तन में एक जूठा साग था, उसको खाया नारायण ने, कृष्ण भगवान ने, और कहा विश्वात्मा प्रसीद। तो दुर्वासा ऋषि और उनके सारे स्टूडेंट्स, जितने चेले चपाटी थे, सबका पेट भर गया गैस करने लगे, बोले बस यहाँ से भागो, खाना खाते का छोड़ो, भागो यहाँ से। तो ये मॉडल प्रॉस्पेरिटी है। रूलिंग क्लास ये इंश्योर करे कि देयर इज इनफ सफिशिएंट फॉर एवरीवन। यही बात गांधी जी ने कही कि दिस मदर अर्थ हैज इनफ फॉर द नीड ऑफ एवरीवन बट नॉट फॉर द ग्रीड ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल। तो अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे लिए कामधेनु हो सकता है, कल्पवृक्ष हो सकता है, अलादीन का चिराग हो सकता है, और कहें तो अंग्रेजी में कहते हैं इसको could be panacea for all our ills provided we pursue in right perspective and right earnest। ठीक से करेंगे तो होगा, करने में दिक्कत है। आपका जो टॉपिक है ना विजन टू एक्शन, हर पॉलिसी का विजन बहुत एक्सीलेंट है, दिक्कत कहाँ है? और क्यों है वो भी एक स्लाइड में आपको बताऊंगा। हमारे टीचर्स को क्या प्रॉब्लम है वो भी देखूंगा, लेकिन अभी तो हम मॉडल देख रहे हैं। तो ये तो एक कामधेनु है जिसकी बात हम कर रहे हैं। जैसे कामधेनु के पास कोई लिमिटेड स्टाफ नहीं है, नौकरी लिमिटेड है, एम्प्लॉयमेंट, देयर इज नो लिमिट टू एंटरप्रेन्योरशिप, एवरीबॉडी को बी एंटरप्रेन्योर। तो उसी तरह का कामधेनु से जो चाहे मांगने इंस्टेंट मिल जाता है, कोई सीमा नहीं। उसी तरह से ये चीज है, दिस इज केपेबल ऑफ चेंजिंग द एंटायर सीन प्रोवाइडेड वी do it in the right earnest। अब इतनी समझ के बाद हम अपने टॉपिक के पहले उस पे आते हैं। अगर हमारा टॉपिक आपको पता हो तो उसका पहला वर्ड है स्किल्स, दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट और चौथा है अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। चारों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। देखिए स्किल्स तो बहुत जरूरी है हमारे लिए, और हमने लिस्टिंग करने का बचाने के लिए कि आप सभी टीचर्स
तो इसको 3 खाने में बांट दिया। एक सेल्फ अवेयरनेस की स्किल्स जिसमें एक्चुअली द लाइफ इज very stressful today, so you have to have the skill to manage your stress. You have to regulate or manage your emotions. Then positive thinking is a great thing. Positive thinking का मतलब टीम प्लेयर होना, इनिशिएटिव लेना, दूसरे की बात सुनना, एम्पैथाइज करना, ये सब पॉजिटिव थिंकिंग। और सेल्फ एस्टीम और ईगो में थोड़ा सा फर्क है। सेल्फ एस्टीम गिव्स यू द सेंस ऑफ वर्दीनेस। ठीक है? एक शेर है गुलजार का लगा, जैसे किसी को याद कोई उर्दू अरबी वाले कोई है क्या? कोई है? नहीं? ऐसा कैसे? लखनऊ में तो ऐसा होने से शेर है, मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। मुख्तसर में थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ सेल्फ एस्टीम इज नेसेसरी फॉर दिस लाइफ, वरना दुनिया पीठ को पायदान बना देती है। मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए, वरना दुनिया पीठ को पायदान बना देती है। लोग आपको स्टेपिंग स्टोन बनाने दूसरी बहुत अच्छी सेट स्किल्स जिसमें इंटरपर्सनल स्किल्स जो हम सबको जानना चाहिए एज ए टीचर एंड एज एन इंडिविजुअल आल्सो, दैट इज अबाउट एम्पैथी। एम्पैथी आप जानते हैं, एम्पैथी मतलब दूसरे की भावनाओं को समझना। एम्पैथी की हिंदी होती है समानुभूति। समानुभूति, सहानुभूति नहीं हो जाती है सिंपैथी। दोनों बहुत फर्क है। लिसनिंग स्किल्स, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, कैसे इंटरजेक्ट करें, कैसे कम्युनिकेट करें, हैंडलिंग डिस्प्यूट्स, कोई इशू है तो उसको कैसे देखें, मैनेजिंग रिलेशनशिप, दिस इज द बिग थिंग नाउअडेज, और कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन, कैसे हम कम्युनिकेट करें so that whatever we have to say, we are able to say without hurting anybody and at the same time confidently conveying what we wish to convey. और तीसरी सेट है वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इसको बोलते हैं, जो मैनेजमेंट में जगह है, सभी के लिए, जिंदगी के लिए जरूरी है। मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, डिसीजन मेकिंग, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, critical and creative thinking, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, किसी काम को किया कैसे जाए। कुछ लोग होते हैं जो किसी चीज को कहने में बहुत अच्छे होते हैं, करने में दे आर वेरी पुअर एग्जीक्यूटर्स। तो एग्जीक्यूशन की स्किल अलग होती है, उसको देखना है। एंड फाइनली द रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब बाउंसिंग बैक। कोई सेटबैक लग गया आपको, कुछ हो गया, तो सेटबैक लगने के बाद ये नहीं कि अपने कोकून में वापस चले गए, बाउंस बैक। ठीक है, आज हमारा टाइम खराब है, आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन कल मेरा भी टाइम आएगा, अपना टाइम भी आएगा। ये कॉन्फिडेंस होना, इसको कहते हैं रेजिलियंस। इज इट विजिबल? अब देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग की बात हमने की थी, एम्प्लॉयबिलिटी की बात अब हम कर रहे हैं, स्किल्स की बात हमने कर ली 3 सेट में। अपने से रिलेटेड 3 सेट का मतलब पहला सेट अपने से रिलेटेड, दूसरा इंटरपर्सनल जब लोगों से बातचीत करनी हो, और तीसरा जब डिसीजन लेना, तो डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एग्जीक्यूशन एंड रेजिलियंस। ये तीसरे 3 सेट्स ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू बी ओन। आज के तारीख में सर्वाइव करने के लिए ये तीनों तरह की स्किल होनी चाहिए, नहीं होगी तो बंदा पिछड़ जाएगा। अब एम्प्लॉयबिलिटी की बात यह है, कैसे नौकरी रोजगार मिले। तो सीधी बात है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो अगर किसी संस्था में कहता है कि नहीं आपको सफेद शर्ट पैंट पहन के आना, ये हमारा ड्रेस है, तो आपको आना है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि भाई ड्राइवर्स का ड्रेस है सफेद शर्ट पैंट पहनेंगे, टोपी लगाएंगे,
तो कोई थोड़े कहेगा कि हम सफेद शर्ट नहीं पहनेंगे, नौकरी करनी है पहना। तो जो फाउंडेशन है, जो प्लेटफॉर्म है, वो है पॉजिटिव अप्रोच। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो फाउंडेशन है वो पॉजिटिव अप्रोच है। बंदे में हम देखते क्या है, देखते हैं कि उसकी अप्रोच कैसी है। इवन यूपीएससी वगैरह जब हम बैठते हैं तो देखते हैं कि बंदा एडमिनिस्ट्रेशन को सूट करेगा कि नहीं। तो कहते हैं भाई इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन क्या टीचर है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को सूट नहीं करेगा। तो पहली बात है पॉजिटिव अप्रोच हैज टू फॉर्म द प्लेटफॉर्म। पॉजिटिव अप्रोच वही है, टीम वर्क कर लेना, ठीक कम्युनिकेट करना, ग्रुप में अपना 100% देने की इनिशिएटिव होना, इस तरह से, जिसको कहते हैं ग्रुप में कसर नहीं खींचना, बराबर बराबर अच्छे से करना। तो अगर ये पॉजिटिव अप्रोच का प्लेटफॉर्म है तो 3 तरह की स्किल्स बेसिकली हैं। एक तो हम कहते हैं न्यूमेरिकल स्किल्स, जो 3 R's हम पहले कहते थे, तो 3 R's अब पुरानी बात हो गई। अब ये 3 स्किल्स हैं, न्यूमेरिकल स्किल्स, लिंग्विस्टिक स्किल्स एंड आईटी स्किल्स। ठीक है, तो these 3 skills are to be mounted on a positive platform। अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स के टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उनका पॉजिटिव थिंकिंग मोड में ले आएंगे उनको, फिर 3 स्किल्स उनके पे माउंट करेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेटिव एफिशिएंसी एंड स्किल्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। उसको आप ठीक से यूज कर सकते, मेरे जैसा नहीं है? कोई मदद ना करे तो बेकार है। जब ये 3 स्किल्स आप होन करेंगे तो वो 4 चीजों में आपकी मदद करेगी। एक तो यू आर एबल टू मैनेज योरसेल्फ बेटर, self management and self confidence that will improve, thinking and problem solving capacity will improve, then working in teams will improve, and understanding of the business। business का मतलब है जो भी टास्क है, ये नहीं कोई बिजनेस है, whatever task है। तो ये चारों चीजें आपकी अच्छे से उभर के आएगी और फिर हम कहते हैं कि that is a well-rounded person for employment। तो हम उसको फिर ले लेते हैं। और कोई सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है लेकिन इनमें लैकिंग है, पॉजिटिव अप्रोच ही नहीं है, किसी के साथ काम ही नहीं कर सकता, अकेला चलो रे टाइप है, तो फिर उसको कहते हैं नहीं ये फिर मैं काम कर रहा हूँ। That kind of person suffers in employment market। तो ये स्किल्स हमको समझनी भी है और स्किल का पार्ट हो गया। कोई क्वेश्चंस आप लोगों को बाद में देंगे। देन आई कम टू द सेकंड थिंग व्हिच इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये एक मुश्किल है जो हम लोग क्वेश्चन देते हैं इम्तिहान में कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, 20 नंबर का, उसके लिखने से नहीं होता है, वो पास करना ठीक है पेपर एंटरप्रेन्योरशिप का, लेकिन actually you have to develop entrepreneurial spirit into the people, into the youth। तो उसके लिए इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा। इसमें 3 चीजों पे काम करना है आपको। तो पर्सनालिटी फैक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, वो बंदे की क्या पर्सनालिटी है, क्या क्या उसका प्लस है, क्या क्या माइनस है। प्लस को और इनहेंस करना है, माइनस को ट्रीट करना है ताकि वो न्यूट्रल जोन में आए, और इफ यू कैन रिड्यूस इट फाइनली एंड ऐड वैल्यू to the pluses, remove the minus, add value to the pluses, so far so good। तो एक तो पर्सनालिटी एस्पेक्ट पे आपको काम करना है, दूसरा कल्चर पे काम करना है। ये जो हमारी गुलामी हो गई ना करीब कितने सालों की, करीब 800 साल, कम से कम 2000 साल, 2000 साल की जो हमारी गुलामी हो गई, तो एक हमारा मजदूर का माइंडसेट हो गया। इसी हम कहते हैं हिस्ट्री से लिंक कर रहे हैं कि हम मजदूर नहीं, पहले इतना मेहनत करके
अम्बेडकर से लेके मायावती जी तक, उन्होंने ये चीज सबको एहसास करा दी कि हम मजदूर नहीं, अपने कम्युनिटी को, वी आर सेम एज यू पीपल, वी हैव इक्वल राइट्स एज यू पीपल। तो ये एहसास कराने में उनको कम से कम 100 साल लगे। यू रीड द राइटिंग्स ऑफ द अम्बेडकर, इतना डेप्थ में लिखा है उसने, आजकल तो खाली हल्ला मचाती है, इतना डेप्थ में इस चीज को लिखा है। एंड दैट इज टारगेटेड टू बोथ, अपनी कम्युनिटी को भी टारगेट किया है और रेस्ट ऑफ द सिटीजन्स को भी टारगेट किया है कि पूरे देश के लिए क्या अच्छा है। तो ये जो गुलामी का हमारा माइंड सेट है ना कल्चर में, तो हम मेंटली हम मजदूर हो गए। फिर हम अंग्रेजों के गुलाम जब हुए पिछले 300 साल, तो हम अंग्रेजी को बहुत सुपीरियर समझते हैं कि जो है सो अंग्रेजी है, और हमारे आप जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ के आए अंग्रेजी में, BA में यूनिवर्सिटी से, तो हम उन्हीं किताबों को वेदवाक्य मानने लगे। हालांकि उनका लिखने का एक एंगल है, जैसे आप भी किताब लिखेंगे तो आपकी एक एंगल होगी, और ये सबके लिए है विचार, व्यवहार, व्यापार। आपकी एंकरिंग कहाँ है आपके थॉट्स की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट रिफ्लेक्ट्स इनटू योर बिहेवियर एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इनटू योर एक्शन। व्यापार मतलब एक्शन। तो वो चाहे आप किताब लिखे, चाहे आप लिखे, चाहे ब्रिटिशर लिखे, चाहे कोई लिखे। आप बहुत सारे ब्रिटिशर्स को देखिए क्योंकि who now have been the scholars of Vedanta and they are now writing। 50 आदमी को इसमें से निकाल दें मोबाइल में से, आप उनको सुनिए how they are viewing and they are convinced to criticize their own culture। जहाँ पे कि एक रिलीजन कह रहा है कि नहीं यही सच है, और एक रिलीजन कह रहा है कि नहीं सच तो एक ही है, और वहाँ जाने के रास्ते कई हैं। आपका भी रास्ता ठीक है, हम उसको मना नहीं कर रहे, वो भी रास्ता ठीक है, ये भी रास्ता ठीक है, ये भी रास्ता ठीक है, बहुत सारे रास्ते और भी हो सकते हैं, है कि नहीं। एक ओंकार सतनाम है कि नहीं, है ना भाई, और एक नूर ते सब जगह कौन भले को बनते। तो ये जो विचार, व्यवहार और व्यापार, ये जब हम कहते हैं कि वी हैव बीन मेंटली स्लेव, तो इस चीज को वी इंटेलेक्चुअल्स। अब ये तो टाइम नहीं है, हम लोग के साथ खुद बहुत बड़ा षड्यंत्र हो गया, उसमें हमारा कोई दोष नहीं। तो हमें फ्री माइंड मिला ही नहीं कि हम उसको उस ढंग से सोचें। बट नाउ एज ए मैच्योर एजुकेटेड पर्सन यू कैन डेल्व इनटू दिस एंड क्वेश्चन द कल्चरल एस्पेक्ट्स। अभी जैसे यूपी में क्या, यूपी में कुछ भी, अरे नौकरी मिल जाए 10 लाख देना पड़ेगा, अरे कहीं से इंतजाम करके दे देंगे, लोग दे देते हैं कि नहीं। कॉलेज में अपॉइंटमेंट है 25 लाख देना पड़ेगा, अरे ठीक है साहब काम नहीं से। और वही गुजरात में जाइए 25 लाख हमको दे दिए, हम साल में उसका 75 लाख बना दें के लिए। लेकिन हमारा माइंड सेट ओपन नहीं है ना, विलिंग टू टेक दैट रिस्क। तो ये माइंड सेट पे आपको थोड़ी सी चूक, हमारा कल्चर ऐसा हो गया है, स्पेशली इधर यूपी बिहार में, तो सरकारी नौकरी का इतना हमको वो हो गया है कि अगर कोई बच्चा कहे कि हमको 2 लाख दे दीजिए, हम कुछ काम करना चाहते हैं, तो ट्रेडिशनल इधर भी जो हाउस होल्ड कहेंगे 2 लाख देके तुमको भेज रहा हूँ दिल्ली, जाओ कोचिंग करो, किसी अपना धंधा उसको ठीक, तो घूस दे देंगे, कोचिंग दे देंगे, लेकिन उसको ये नहीं इंकरेज करेंगे कि तुम अपना हाथ ट्राई करो यार। और एक जो पान की दुकान है हजरतगंज में, वही पता नहीं रोज का इनकम उसका आप जोड़िए तो बहुत जाता है। जो सूट टाई वही पहन करके ये प्राइवेट जो पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाते हैं बेचारे बच्चे, कितनी तनख्वाह, उसमें क्या रखा। लेकिन हम वो बैरियर अभी तोड़ नहीं पा रहे क्योंकि सोसाइटी हमारे साथ नहीं है। और ऐसे लड़के को तो बहू भी नहीं मिलेगी जो अपना धंधा करता है। वो कहेगा ठीक है सरकारी नौकरी है, ITI कर लिया है, NTPC में लग गया, 30,000 रुपया नौकरी, अच्छा है, आगे का भविष्य भी है। और जो स्थान है वहाँ नहीं, तमिलनाडु है, वहाँ तो कोई नौकरी के पीछे है ही नहीं भाई। आप महाराष्ट्र में 10 से ज़्यादा पढ़ा नहीं आदमी, बहुत होगा तो इंटर होगा बस, और उसका मतलब आउटलुक और ये सब हवा डबा ऐसा होगा कि हम तो लैंग्वेज में मजदूर हैं। और जब वो बोलना शुरू कर इसको कुछ आता ही नहीं, अपना धंधा छोड़ के तो इसको कुछ पता ही नहीं। रामचरित मानस में कितने कांड हैं अभी इसको नहीं पता, हर धंधे को जानता 24 घंटे। बिकॉज
he lives that life only. तो ये कल्चर को हमको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसको तोड़ना है, which is very difficult. And then finally इकोसिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट जो हमको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, दुनिया भर का आजकल है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब कि आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, सरकार बड़े बड़े डिपार्टमेंट क्रिएट किए, आगे बढ़ो, और GMDIC कहते हैं लड़की को कोई नौकरी दिला देते त्रिपाठी, वो उद्योग के लिए जनरल मैनेजर है पूरे जिले के लिए, अपने लड़के के लिए कहते हैं कोई आप देखिए आप तो हम जिस कुर्सी को जिसको डिस्चार्ज करने के लिए बैठे हैं उसी में हमारा फेथ नहीं है, हम खाली नौकरी कर, ये सब बहुत सारी दिक्कतें, गहराई से ये सब दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से कि प्रदेश पिछड़ा है, और देश तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक कि ये प्रदेश ना बढ़े, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रदेश है देश का। तो इसलिए कल्चर को हमको देखना है, अब इकोसिस्टम को भी देखना है। आपके क्वेश्चन अब देखिए 3 डायमेंशन है एंटरप्रेन्योरशिप का। If you really want to develop entrepreneurship, there are 3 dimensions that you have to take care of. एक तो है रिस्क, नौकरी में रिस्क नहीं है, रिस्क नहीं तो कुछ गेन भी नहीं है, है नहीं? और आजकल तो और भी नहीं है, सरकारी नौकरी है तो क्या है, रिटायर हो जाएगी, सरकारी नौकरी का एक ही अट्रैक्शन है पेंशन मिलेगी, और मर जाएंगे तो स्पाउस को पेंशन मिलेगा। अभी तो भी खत्म कर दिया, पता नहीं चुनाव के बाद इंट्रोड्यूस कर दें तो हम नहीं जानेंगे, लेकिन अभी तो खत्म कर दिया 2005 से, तो रिस्क तो नौकरी में भी हो गया। एक है रिस्क और दूसरा है इनोवेशन। अब एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, डॉक्टर मान लीजिए बैठता है अपनी क्लिनिक खोल के 10 से 5, उसको भी लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर है। एक टीचर है, मैथ का ट्यूशन पढ़ाता है सुबह शाम, वो भी एंटरप्रेन्योर है क्या? नहीं, क्योंकि आप में से सब्जेक्ट किसी का नहीं है, लेकिन एक डिस्टिंक्शन बताना मेरा धर्म है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में फर्क। और ये साइड में कोट है पीटर ड्रकर का, वो वेरी फेमस अथॉरिटी इन मैनेजमेंट। ड्रकर ने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस तो डॉक्टर भी करता है, प्रैक्टिस तो वो ट्यूटर भी करता है, ट्यूशन पढ़ाता है। तो आगे वो लिखता है, दिस मींस एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट a state of being or making plans that are not acted upon. Entrepreneurship begins with action. अब इसके बाद जो वही फर्क है, क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द टेस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। 3 डायमेंशन है, रिस्क, इनोवेशन एंड क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं क्रिएट करते हैं, हम ट्यूटर हो सकते हैं, जिंदगी में मैथमेटिक्स पढ़ाएं, डॉक्टर है, क्लिनिक ले लिया, जिंदगी में प्रैक्टिस किया, खूब पैसा कमाया, लेकिन हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वही है जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करता है, ठीक है ना? व्हाट्स द बैकग्राउंड? सर कॉमर्स। देखिए डॉक्टर है, अगर गहराई से इस बात सर डॉक्टर अगर है वो नर्सिंग होम चलाता है तो एंटरप्रेन्योर। अगर नर्सिंग होम चलाता है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चलाता है तो वो एंटरप्रेन्योर। टीचर है, अगर कोचिंग सेंटर चलाता है या हमारा जैसा एजुकेटर कोई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी सेटअप करता है तो ही बिकम्स एन एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर बाय एक्सीलेंस। तो 3 टेस्ट हैं आपके लिए, क्योंकि यूजुअली कंफ्यूजन हो जाता है कि वो भी तो एंटरप्रेन्योर नहीं, unless you create an organization। और इसीलिए हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज a tool to solve our problems, because once you create an organization you give employment to at least 5, 10, 20 people and you feed 5, 10, 20 families through that। तो इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो मनी मल्टीप्लायर से भी ज्यादा है। The multiplier effect of entrepreneurship in gainfully utilizing the skills of the society is much more। अब इसके बाद थोड़ी लास्ट पे आते हैं अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस पे, क्योंकि हम आधा घंटा आपके लिए छोड़ना भी चाहते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हो उसको लेने के लिए। देखिए अपॉर्चुनिटी खोजने के लिए तो ये है कि हीरा पड़ा बाजार में रहा छा बैठा है, हर जगह अपॉर्चुनिटी है, आपकी निगाह जानी चाहिए, ठीक है, हर जगह अपॉर्चुनिटी। इसको कैसे ठीक किया था भाई, इसी से हट गया था क्या? नहीं हटा।
Do you want to exit? No. तीन इसके ट्रायंगल के तीन टिप्स पे जो चीजें हैं वो एक तो है नीड ऑफ द सोसाइटी। अपॉर्चुनिटी कहाँ से निकलती है? लोगों की जरूरत में से निकलती है। जैसे आजकल क्या हो गया है, इंग्लिश एजुकेशन कॉन्वेंट्स की बहुत डिमांड हो गई। हम लोग के टाइम में बिल्कुल भी डिमांड नहीं थी, क्योंकि तब इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। तो जो पढ़ लिख के निकले गांव के प्राइमरी स्कूलों से उनको भी नौकरी मिल गई, एवरीबॉडी वाज हैप्पी। तो हम लोग तो सीबीएसई का नाम ही सुने जब यूनिवर्सिटी में आ गए तो कि अच्छा ये भी एक बोर्ड होता है। हम लोग तो यूपी बोर्ड ही बोर्ड हुआ करता था। तो सीबीएसई वी हर्ड व्हेन वी केम टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अभी क्या हो रहा है? अभी तो गली गली में सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल खुला हुआ है, क्योंकि नीड ऑफ द सोसाइटी हैज चेंज्ड। अभी सबको ये लग रहा है कि अगर बच्चा शुरू से अंग्रेजी पढ़ेगा तो कम से कम अपनी रोजी रोटी तो बहुत बड़ा अफसर भले न बने, लेकिन यह है कि एम्प्लॉयबिलिटी उसकी फैसिलिटेट हो जाएगी। इसलिए ये नीड ऑफ सोसाइटी चेंज हो गई। दूसरी बात है कैपेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। नीड तो आपने समझ, लेकिन आप कैपेबल हैं कि नहीं उसको करने की, ये भी बात है कि नहीं? नीड तो आपने समझ ली, लेकिन आप कैपेबल हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लग रहा है कि बेसिक एजुकेशन अगर यूनिवर्सल हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्यों 13 तरह का सिलेबस पढ़ाना है? आईसीएसई अलग पढ़ाए, सीबीएसई अलग पढ़ाए, स्टेट बोर्ड्स अलग पढ़ाए। इससे अच्छा देयर शुड बी ए कॉमन मिनिमम सिलेबस व्हिच शुड बी टॉट टू एवरीबॉडी, प्लस ऐड ऑन इफ यू वांट डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट स्पेसिफिक नीड्स लाइक स्टेट्स लैंग्वेज एटसेट्रा दैट यू कैन ऐड। लेकिन गवर्नमेंट इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट बिकॉज़ ऑफ द वोट इशू। तमिलनाडु का कहेंगे हम पढ़ाएंगे ही नहीं, हम हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, क्या करेंगे आप? वहीं बगल में केरल जो है हिंदी पढ़ाता है, तो केरल वाले ना खाली हिंदी पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में केरल। तमिलनाडु वालों को बहुत दिक्कत होती है। चिदम्बरम का प्रपोजल गया कि आप प्राइम मिनिस्टर हो जाइए, कांग्रेस अब डूब रही है। चिदम्बरम कहे कि मैं हो तो सकता हूँ, लेकिन द ओनली लिमिटेशन इज आई डू नॉट नो हिंदी। कैपेबिलिटी की बात है और रिसोर्सेज की बात है। तो ये तीन चीज से अपॉर्चुनिटी निकलती है। नीड ऑफ द सोसाइटी, कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू बी एंटरप्रेन्योर एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल। ठीक है, इसी से अपॉर्चुनिटी खोजी जाती है। कैसे खोजी जाएगी प्रोसेस उसके बारे में बात करें, लेकिन तरीका यही है खोजने का। अब एक चीज है अपॉर्चुनिटी के बारे में हम ये डिबेट कर लेते हैं। आपसे पूछा कौन सी दुकान खोलें, आपका आपको यंग, हमारी उम्र में कोई होगा तो उसका लड़का कहेगा ठीक है तो आपको 5 लाख आप दे रहे हैं, लेकिन हम कौन सा बिजनेस शुरू करें? आप बताओ कौन सा बिजनेस शुरू करें? पैसा भी आप दो और बिजनेस भी आपको बताओ कौन सा शुरू करें। यही हमारी कल्चरल डिपेंडेंसी है। नई जनरेशन जो है वो पिलर पे बने मकान की तरह से, उसमें बच्चों का रोल दीवार है। जब आपको कोई लोड ही नहीं है, खोल दीजिए तो भी मकान खड़ा रहेगा। जिंदगी भर पेरेंट्स पे ही लोड है, पिलर्स। एक चीज शुरू से हम लोग को सिखाई जाती है ना, डिसीजन तो लेने नहीं दिया जाता है स्टार्टिंग से ही बच्चों को। ये बात भी सही है। देखिए तो वो डिसीजन मेकिंग उनके अंदर आती नहीं है। आई एग्री विद यू, वो स्पेस सोसाइटी नहीं देती है ताकि बच्चे शुरू से डिसीजन लें। तो आप देखेंगे सर्विस क्लास फैमिलीज में 20 साल का बेटा है, बेटी को उसको नोट गिनने नहीं आएगा। आप गड्डी दे दीजिए तो उसको नोट गिनने नहीं आएगा, इधर उधर करेगा, पता नहीं क्या पलटा भी गलत ही गिनेगा। और 6-7 साल का जो बिजनेस फैमिली का बच्चा या बच्ची होगा वो खट से गिन देगा, हमसे तेज गिन देगा और सही गिनेगा, उसको उस स्पेस मिला हुआ है। तो ये अब इस पे आ जाएंगे। ये एक छोटी सी फ्रेमवर्क जो आपको मदद करती है कि क्या करना है। जैसे माने कोई जरूरत है, जो नीड है वो हाईली क्रिटिकल है और लोगों का बहुत ज्यादा डिसकंटेंटमेंट उसके लिए है, तो कहते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर टुडे। जैसे एग्जांपल लें कि मेडिकल एजुकेशन, यूक्रेन होने के बाद डिसकंटेंटमेंट इज वेरी हाई इन द गार्जियंस एंड नीड हैज ऑलवेज बीन क्रिटिकल। तो अभी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि मेडिकल कॉलेजेस खोले जाए। तो महिंद्रा भी कह रहे हैं कि मोदी ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज खोले जाने चाहिए, तो महिंद्रा भी खोलेंगे, रिलायंस भी खोलेगा, अडानी भी खोलेंगे, क्योंकि दोनों नीड इज वेरी क्रिटिकल एंड पीपल आर हाईली डिसकंटेंटेड विद इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर स्टूडेंट्स हु गो अब्रॉड टू परस्यू देयर मेडिकल डिग्रीज। और अगर मान लीजिए कि इधर लो डिसकंटेंट है
और क्रिटिकलिटी लो है तो वो कोई कभी बहुत दिन में आएगा। और अगर डिसकंटेंट हाई है और जरूरत कम है उसकी लोगों की तो अपॉर्चुनिटी भविष्य में आएगी। और लास्ट क्वाड्रेंट स्कोप फॉर इनोवेशन वेयर द नीड क्रिटिकलिटी इज हाई बट डिसकंटेंटमेंट इज लो। जैसे मान लीजिए एनर्जी या ऑटोमोबाइल मॉडल्स, जो ही हमको मिल रहा है हम उससे सेटिस्फाइड मतलब डिसकंटेंटेड नहीं, हम तो बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि हम लोग के टाइम में 2 ही गाड़ियां एम्बेसडर और फिएट हुआ करती थी और 2 ही स्कूटर हुआ करते थे, लम्ब्रेटा और बजाज सुपर। और चेतक पे लोग नंबर लगाते थे बेटी की शादी के लिए 10 साल पहले से, क्योंकि वो एक्सपोर्ट मॉडल था तो उसका नंबर जो ब्लैक कलर था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि नीड क्रिटिकलिटी इज देयर एंड दिस कंटेंटमेंट इज लो, देयरफॉर स्कोप फॉर इनोवेशन इज वेरी हाई। एक साल में 5-6 मॉडल आ जा रहा है, किसी का भी नया नई चीजें आती जा रही है। तो ये जब आप चीजों की क्रिटिकलिटी और डिसकंटेंटमेंट एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कौन से प्रोडक्ट में आपको जाना चाहिए, कौन से में अभी नहीं जाना चाहिए और कौन से में जाना चाहिए विद इनोवेशन। जैसे जितने स्कूटर बनते थे 2003 तक सबने कह दिया कि स्कूटर का मार्केट इंडिया से खत्म। एलेवन मोटरसाइकिल बनाने लगा, बजाज भी मोटरसाइकिल पे आ गया, कावासाकी बजाज उसकी मॉडल आ गई, राजदूत पहले से मोटरसाइकिल बनाता था, सब मोटरसाइकिल पे आ गया, इनफील्ड हो गया। स्कूटर सबने खत्म कर दिया था, फेज आउट कर दिया, ठीक है। लेकिन हाई क्रिटिकलिटी थी नीड की तो होंडा आया उस टाइम और होंडा ने क्या किया, उन्हें बटन स्टार्ट स्कूटी दी एक्टिवा, और सस्ती नहीं थी उस समय भी 55,000 रुपए की वो थी, लेकिन स्कूटी वो एकदम हिट हो गई क्योंकि उन्होंने नीड क्रिटिकलिटी समझा कि लेडीज ऑफिस गोइंग, गर्ल्स स्कूल गोइंग एंड एजेड पीपल वांट टू गो आउट फॉर द स्मॉल फैमिली रिक्वायरमेंट्स इन द इवनिंग, तो उनके लिए मोटरसाइकिल नहीं ठीक चीज है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये स्कूटी लोग फेज आउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किक मारने का सिस्टम है और किक ना महिलाएं मारने में कंफर्टेबल है ना एजेड आदमी मारने में कंफर्टेबल है। आजकल तो किसी की भी स्पाइन इतना काम नहीं करते हैं कि कोई किक मारे। तो उसने क्या किया, उसने इनोवेशन किया, बटन स्टार्ट 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, मतलब 4 स्ट्रोक इंजन उसमें भी उसमें लिखे। हाँ 4 स्ट्रोक किया, नहीं तो 4 स्ट्रोक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके बाद जो जो लोग स्कूटर बनाना बंद कर दिए थे दे ऑल पहले की स्कूटी बिजनेस। स्कूटी आया ये सब अब सबकी टीवीएस की भी स्कूटी है, बजाज की भी स्कूटी है, सबकी 4 स्ट्रोक नहीं है, लेकिन स्कूटी सबकी आ गई विद बटन स्टार्ट, है कि नहीं। तो इनोवेशन तो आपको देखना है। इसी तरह मोटरसाइकिल में भी बटन स्टार्ट दे दिया। हाँ वो तो फिर तो इनोवेशन जो तुरंत क्या कहते हैं मजबूरी में करना पड़ा। इनोवेशन बिकम्स ए कॉमन गुड ओवरनाइट। एक आदमी जब पाउच में शुरू करेगा तो फिर अगले दिन सारे ब्रांड पाउच में करेंगे। बहुत क्लासिक आप जो देखते हैं दुकानों पे ये कोल्ड ड्रिंक रखने वाले कोका कोला और उसके दूसरी जो कंपनी है, तो एक के दिमाग में आइडिया आया ठीक है पान की दुकान पे हमारा कोला बिक सकता है, लेकिन इसके पास क्या है, छोटे से उस थर्मोकोल में बर्फ रख के 2-4 बोतल रखता है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम तुमको फ्रिज दे देते हैं, फ्रिज हम इंस्टॉल कर देंगे, शर्त है खाली हमारा प्रोडक्ट रखोगे। अगले दिन से दूसरी कंपनी को भी आइडिया हो गया। इनोवेशन वंस इट इज इन द पब्लिक इट बिकम्स ए कॉमन कमोडिटी। तो अगले तुरंत ओवरनाइट दूसरे ने भी कह दिया भैया ऐसा क्या, हम भी दूसरी तरह के दे रहे हैं लेकिन तुम खाली हमारा सामान रखोगे। तो sources of opportunity, these are some of the sources. I will not go into detail. कुछ तो अनएक्सपेक्टेड है, जैसे 73 में तेल निकला रेगिस्तान में से, आप किसी कुछ लोगों को पता होगा दुबई को अंग्रेज नेहरू जी को फ्री में दे दिए। नेहरू जी कहे कि अभी अपना ही देश नहीं संभल रहा है, इतना बवाल मार काट मचा हुआ है, अभी टापू और दे दे रहे हैं, 4 घंटा हो गया। और 47 के बाद 73 में तेल निकल गया, ब्लैक डायमंड हो गया। उसी तरह से इनकॉन्ग्रुअस, मतलब जिसको हम कहते हैं कि स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, जो चीज बैठ नहीं रही, चाहे वो समाज के मूल्य के साथ, चाहे फैमिलीज के साथ, चाहे जनरेशंस के साथ, तो वो शिफ्ट होनी ही होनी है। इनकॉन्ग्रुअस, जहां भी इनकॉन्ग्रुइटी होगी वहां अपॉर्चुनिटी होगी। देन यू ऑलवेज हैव द स्कोप टू इंप्रूव प्रोसेसेस। जो प्रोसेस चल रहा है लंबा चौड़ा, उस प्रोसेस, जैसे पैसा है आजकल, तो मूंगफली की दुकान भाई 50 ग्राम मूंगफली देना, 100 का नोट दिया साहब चेंज नहीं है। अब वो प्रोसेस अब इम्प्रूव हो गया,
पता नहीं क्या मोबाइल सुना देते हैं, हमको तो नहीं आता है, वो सुना दिया, वो पेमेंट हो गया, मूंगफली का पेमेंट हो गया, वो आइसक्रीम का पेमेंट हो गया, मॉल में कुछ खरीदा पेमेंट, बड़ा इजी है सर। हाँ बहुत इजी है, जो करते हैं बहुत वेरी पॉपुलर। सो प्रोसेस अपॉर्चुनिटी, और भारत पे इतनी सरकार बैन करने की कोशिश करेगी, इतना भारत पे पॉपुलर है सरकार बैन डिस्पाइट द इरेगुलरिटीज। उसे इंडस्ट्रियल मार्केट स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक्स, अब जैसे लड़कियां दे हैव कम इन अ बिग वे इन एजुकेशन, तो आप देखेंगे छोटे छोटे तहसील या टाउन्स में लड़कियों की बात कटाने के सेरेमनी ये सब नहीं, कोई चाहे तो बहुत अच्छा स्कूल है तो स्कूल जाना, महीने में 15 दिन में बात कटाना जरूरत है उसकी, पहले सब नहीं। तो डेमोग्राफिक्स जैसे जैसे चेंज हुई वैसे वैसे स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी बढ़ती चीज़, द चेंज इन परसेप्शन, लोगों का जैसे जैसे परसेप्शन चेंज होता, माइंड से चेंज होता, जैसे मान लीजिए हमारे ज़माने में तो कंघी भी रखना जो लोग स्टूडेंट के बुरा मानते थे, कोई कंघी रखेगा जा रहा है पॉकेट में, अच्छा देखो पढ़ने जा रहा है, फैशन करने जा रहा है। अभी क्या है, अभी जैसे मोबाइल हैज बिकम एन एसेंशियल, बिकॉज इट लिंक्स आल्सो पार्टली बिकॉज ऑफ द रिस्क दैट हैव इंक्रीज्ड इन द एनवायरनमेंट, इट इज ट्रीटेड एज एन एसेंशियल बाय एवरीबॉडी। तो खाने को भले ना आटे लेकिन मोबाइल होना चाहिए, मोटरसाइकिल होना चाहिए, चश्मा होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। तो ये परसेप्शन बदल गया, एंड विद न्यू नॉलेज ऑल्सो, जैसे जैसे नई चीज़ समाज में आती है, नई अपॉर्चुनिटीज नया नॉलेज आता है, उसमें से भी अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। कोई भी चीज़ जो पहले नहीं मालूम थी आज मालूम हो गई तो उससे अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग कहते हैं कि जो गोवंश है, गोवंश हैज बिकम अ बर्डन। पहले तो गवर्नमेंट्स पर पूछ रहे थे तो चला जाता था अपना जहाँ भी बंगाल के जहाँ भी या बांग्लादेश में, अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इट इज कॉजिंग अ रियल डिफिकल्टी टू द फार्मर्स, है कि नहीं? तो अब ये प्रॉब्लम इसे सॉल्यूशन निकले, एक तो इसका साइंटिफिक सॉल्यूशन आ गया, नाउ द पीपल आर यूजिंग सेक्स सॉर्टेड सीमेन, ताकि उनको पता है कि 99% इसमें बच्ची आई, लेकिन उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस बाद में नेचुरल होंगे ये भी पता नहीं। ये तो हमारा शॉर्ट साइटेड सॉल्यूशन है, लेकिन उसका नेचुरल सॉल्यूशन भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा यूज ले आए एनिमल ड्रिवन पावर का, क्योंकि पास्ट में तो एनिमल ड्रिवन पावर ही मेन सोर्स ऑफ पावर था, तो आप उसकी यूटिलिटी कोई ऐसी ले आए कि वो चीज़ें फिर से यूजफुल हो जाए और उनका एक अलग सेक्टर क्रिएट हो जाए। सो न्यू नॉलेज ऑलवेज ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटी। देन लास्ट इज अबाउट चैलेंजेस। क्या चैलेंज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहें तो चैलेंज क्या है, हम लास्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी पे थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि हम टीचर्स हैं तो लास्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट। पहली बात ये है कि सर्वाइवल एंड ग्रोथ। एंटरप्रेन्योर्स आर कमिंग बट दे आर नॉट मीटिंग द सक्सेस। सक्सेस रेट इज वेरी वेरी low. Most of the ventures are meeting natural death within a period of 3 years. तो जैसे पहले हमारी इन्फेंट मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी, आप पिछले 50 साल का स्टैटिस्टिक्स स्टडी करेंगे तो हम बहुत इम्प्रूव किए हैं, बट स्टिल वी हैव वो लॉन्ग में कंपेयर टू केरला जहाँ पे कि वो बहुत कम है इन्फेंट मॉर्टेलिटी, ठीक है। उसी तरह से ये जो हमारी वेंचर मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कम है। उसके लिए हमको क्या करना है देखना है। दिस इज फॉर द एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स। डिटेल से पूरा लेक्चर होगा तो उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एक ये हमारे सामने समस्या है। दूसरा इशू है सोशल चैलेंज। ये जो टोटो आ गया है, तो अब तो मान लीजिए कि एक घर में एक पेरेंट्स हमको तो बच्चियां ही हैं, तो बड़ी बच्ची है उसने अगर डीएल बनवा दिया, टोटो चलाना चाहती है तो क्या दिक्कत है? तो रिक्शा तो है, तो चलाया। आप तो बाहर जाएंगे तो बाहर की कंट्री में तो टैक्सी से ज़्यादा तो चाइना में जाएंगे, टैक्सी जो है इवन ट्रक्स ऑल्सो। ये सोशल इशू है कि लोग क्या कहेंगे बच्ची से टोटो चल रहा है, तो बच्चा है चाहे बच्ची, हमारे लिए तो वही है। अब अगर हम अगर अर्न नहीं कर पा रहे हैं या हमारी अर्निंग को सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, तो जो भी रिसोर्स अवेलेबल उसको काम करने दीजिए।
आज हो सकता है आप टोटो चलाना शुरू करें, कल हो सकता है ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक, किसी किस्मत आप थोड़ी है। तो जब आप शुरू ही नहीं करने देंगे, when you leave the things in the bud only because of social complexes, तो वो ठीक है। तो ऐसा कुछ तो आपको भी as leading lights of the society, as educated person of the society, आपको encourage करना चाहिए। नहीं ये बच्ची बहुत अच्छा काम की, कम से कम पे पैर पर तो है, क्या करना, टोटो चलाने बहुत सही होगा। जो घराव चलाओ, जैसे अपना एक्टिवा चलाओ, रात में मत चलो, ठीक है, सवेरे 10 बजे निकलो, 5 बजे चलो। The challenges of nurturing rural entrepreneurship. Rural areas में कुछ और भी challenges ज़्यादा है तो इसलिए है कि rural area में सबसे बड़ा समस्या है कि इनके पास land है। They are the people who are mostly white collar workers in cities. हमारे जैसे घर में खेती है, पढ़ाई करके मास्टरी भी कर रहे हैं। तो हमारी लैंड क्या हो रही है? That is grossly underutilized. हम बटाई सटाई को दे देते हैं और मेरा प्राइम फोकस क्या है? The property must remain safe. Productivity is not an issue with me. Safety is the primary issue. ये बहुत ज़्यादा तरीकों के साथ लिंक दिया है। तो उससे क्या हो रहा है? इतना बड़ा जो रिसोर्स है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। प्रोडक्टिविटी बहुत कम, प्रॉस्पेरिटी बहुत कम। गरीब आदमी को देते हैं, जो कुछ पैदा होता है वो करता है, कुछ हमको दे देता है, ना भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इतना ईमानदार है कि वो उसमें से हमको दे देता है। पानी बरसने पानी लेने की उसको उतनी फाइनेंशियल मसल नहीं है, खाद की उतनी मसल नहीं है, अच्छे बीज डालने की उसकी मसल नहीं है, अकल नहीं है। तो एग्रीकल्चर जो कुछ सोना पैदा कर सकता है, प्रॉस्पेरिटी जहाँ पे बढ़ेगी वहीं एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, क्योंकि एसेंशियली इट इन्वॉल्व्स रिस्क। तो आपको कुछ हाथ जलाने के लिए होना तो चाहिए ना, 2, 4, 10, 20 हज़ार जब पॉकेट में होगा तब आप चलेंगे एक्सपेरिमेंट करने में, उसमें से 10% में आप सक्सीड भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है रूरल एरिया में हमारा एग्रीकल्चरल अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स है। दूसरा कल्चरल इश्यूज भी हैं, जेंडर इश्यूज भी हैं, सोशल इश्यूज भी, सब कुछ है। तो एक कॉम्प्लेक्स कैनवास है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का। स्कोप एग्री एंड एग्री बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत स्कोप है। आप खाली धनिया पैदा करें, एक्सपोर्ट करें तो आप करोड़पति बन जाएंगे। मेरा वादा है मार्केट का विकास। धनिया समझते हैं, कोरिएंडर। देन फाइनली जो हमारा आपका कंसर्न है इस challenges to deliver effective entrepreneurial education। और देखिए एक तो तैरने की फिजिक्स होती है, the physics of swimming is based on Archimedes principle। सब जानते हैं, सभी जानते हैं कि कोई बॉडी जब अपने वेट के बराबर फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी तो दैट विल स्टे अफ्लोट। ये तो फिजिक्स है। एक है तैरना सीखा, जो कि कोच सिखाता है, कहता है स्विमिंग पूल में आओ या वो में क्लब में आओ शाम को और तुमको तैरना सिखाए। तो द कोच नोज हाउ टू स्विम एंड ही कैन ट्रेन अदर्स आल्सो हाउ टू स्विम। But one who teaches the physics of swimming, not necessarily he knows the swimming and cannot teach how to swim। तो हम लोग ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप के टीचर हैं जो कि हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए किताबों से। What are the 10 best qualities of entrepreneur? What is women entrepreneurship? What is this that? कभी हाथ अपना चलाया नहीं उसमें। तो हम क्या? एक ये दिक्कत है। Delivering the effective entrepreneurial education, this is a real issue। ऐसे लोग कम हैं। और आप सब कहेंगे कि ये लेक्चर क्या पढ़ा कि इसमें ऐसी बात बताया नहीं। उसका कारण देखिए एक कोट हमने दिया है। ट्रेडिशनली हमारा जो माइंड है ना एजुकेशन के लिए, ट्रेडिशनली वो सोक्रेटिस वाज अ फेमस फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर। उसने कहा कि द बेस्ट नॉलेज इज अबाउट आइडिएशन। जगत ध्रुवम स्यात् जगत ध्रुवम स्यात्। दुनिया सत्य है कि नहीं सत्य, इसी को डिबेट कर रहे हैं, कई जनरेशन बीत गया है शंकराचार्य का। तो हम आज भी इसी में फंसे हैं। जो ट्रेडिशनल टीचर्स हैं वो कंसेप्चुअलाइजेशन, आइडिएशन को बेस्ट नॉलेज मानते हैं। सेकंड इज अबाउट इवेंट। जो हिस्ट्री टीचर्स हैं, जब पोरस की लड़ाई
उससे भी क्या करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट से, तो हम इवेंट में फंसे रहते हैं। और थर्ड जो कि बिलो एवरेज माना जाता है, पीपल हु टॉक अबाउट द पर्सन्स। हियर इन केस ऑफ टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप वी हैव टू टॉक अबाउट पर्सन्स। तो जो हम ट्रेडिशनल टीचर्स हमारे माइंड में ये बहुत लो ग्रेड का टीचिंग नहीं पढ़ाया गया, उसको नया कंसेप्ट नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, बट एक्चुअली इट इज ए हाइब्रिड वेयर ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग पीपल इज इक्वली नॉलेज कंपोनेंट है, लेकिन वो 30% नॉलेज से कोई एक्शन में प्रवीण नहीं होता है। तो ये जो स्किल है एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग की, वो अलग तरह की स्किल है। टू इम्पार्ट स्किल यू हैव टू फर्स्ट मास्टर द स्किल, ओनली देन यू कैन इम्पार्ट द स्किल। नकली गुरु जितने टीवी पे हैं, तो किसी को चेला से पैसा जरूर बैठ सकते हैं, लेकिन किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। कोई हाल हम लोग हमारे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप टीचर से, जब खुद हमको भेंट नहीं है उसके निटी-ग्रिटी से, तो हम लोग इसको इंफीरियर टीचिंग, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसका फोकस है बच्चे को डेवलप करना उस मोड में। जैसे आप मिट्टी को करके ईंटे के सांचे में ढाल देते हैं इन ब्रिक मेकिंग यूनिट, उसी तरह से हमको बच्चे को डेवलप करके एंटरप्रेन्योर के मोड में ढाल देना है। तो ये हमें आने में टाइम। सो एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन, ये आने के लिए क्या है कि सोसाइटी को चेंज होना है। सोसाइटी चेंज होगी तो हम टीचर्स तो ये बात को समझ गए, है कि नहीं? हम जो बात कह रहे हैं 1% सच है कि नहीं? आप हमसे थोड़ा तो कन्विंस है। तो इंटेलेक्चुअल लेवल पर इतनी हमारे पास रिजिडिटी नहीं है, लेकिन सोशल लेवल पर बहुत रिजिडिटी है। उसके लिए क्या करना है? सोसाइटी हैज टू अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। पहली बात तो बिजनेस को हम इज्जत की निगाह से देखें, बिजनेस को हम इज्जत की निगाह से देखें। गवर्नमेंट भी नहीं देखती थी, ये भी बता दें आप। गवर्नमेंट हमेशा बिजनेस को डिस्ट्रस्ट के हिसाब से देखती है, जबकि क्या होना चाहिए? आपको ट्रस्ट से शुरू करना चाहिए, अनलेस अदरवाइज प्रूव टू बी नॉट ट्रस्टवर्दी। लेकिन हम कहते हैं वी स्टार्ट विद डिस्ट्रस्ट एंड वी से दैट यू प्रूव दैट यू आर ट्रस्टवर्दी। तो वो गलत बात है। और बिजनेस भी कोई गंगा जल में धुला नहीं है, बिजनेस वाले भी उतने नहीं हैंकी पैंकी प्रैक्टिसेस में ऐसी बात नहीं है। तो ताली दो हाथ से बजती है, लेकिन इसकी जरूरत है कि दोनों हाथ साथ आए। सो वी हैव टू change the societal attitude towards business and entrepreneurs. Then we have to create exemplars. हर सोसाइटी में, हर मोहल्ले में सक्सेसफुल लोग जो हों वो आप कहें, तो एग्जाम्पल के तौर पर पेश करें। जैसे हम गांधी, नेहरू, सुभाष की बात करते रहते हैं, वैसे जो भी एंटरप्रेन्योर्स, यहाँ तो उल्टा पॉलिटिशियंस तो अंबानी अडानी को गाली देते रहते हैं। ऐसे लगता है कि सारा पैसा खुद ही खा रहा है, ऊपर लेके जाएंगे, उनके कफन में जेब लगी है, ऊपर पैसा लेके जाएंगे बैंक वाले से। Essentially they are doing service to the nation. जो भी देश बढ़ा है, चाहे अच्छे बुरे जो भी हैं, 50 बिजनेस हाउसेस की वजह से बढ़ा है। गिनती क्या होगा? चाहे मफतलाल हो, चाहे बिरला हो, चाहे अम्बानी हो, चाहे जेकेज हो, चाहे रियाज हो, अगर 50 बिजनेस हाउसेस का कंट्रीब्यूशन आप हटा दीजिए पिछले 70 साल में, तो गवर्नमेंट के भरोसे हम यहाँ से यहाँ चल पाते हैं। उसकी जरूरत है। Then mentoring by operating enterprises with government support. एक mentoring का प्रोग्राम ठीक ढंग से होना चाहिए। हर चीज खाना पूर्ति यहाँ हो जाती है, एक्चुअली वो सबसे बड़ी समस्या है। तो वो हमारी अप्रोच को चेंज करना है। और एक इंक्यूबेशन लास्ट पॉइंट है, इंक्यूबेशन फैसिलिटी देनी चाहिए, जहाँ पे बच्चे के दिमाग में कोई नया इनोवेटिव आइडिया है तो उसके साथ वो एक्सपेरिमेंट कर सके। आप उसको छोटा सा स्पेस दे दीजिए, बैठने की जगह दे दीजिए, एक डिस्कस करने के लिए एक्सपर्ट को दे दीजिए ताकि उसको कन्फ्यूजन में डिस्कस कर ले। और फाइनली जब उसकी आइडिया लगता है कि प्रॉमिसिंग है, तो किसी वेंचर कैपिटल से उसको कनेक्ट करा दीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके या अपनी आइडिया को आउटराइट को बेच करके पैसा दे सके। तो ये काम जब हम करेंगे तो मेरे ख्याल में एज ए टीचर हम लोग का रोल थोड़ा अच्छा होगा। आई विल क्लोज हियर एंड इनवाइट क्वेश्चंस फ्रॉम यू। मोस्ट वेलकम फॉर योर क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस प्लीज। एक कोट देते बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने प्रॉस्पेरिटी से शुरुआत की थी। प्रियंबल कॉन्स्टिट्यूशन, सरदार पटेल की 3 इच्छाएं थी। द ग्रेट विजनरी सरदार वल्लभ भाई पटेल, 3 ड्रीम्स टू फुलफिल। पहली थी एन इंटीग्रेटेड इंडिया,
जो उन्होंने कर दी, सारे राजे रजवाड़ों को मिला करके सारी रियासत को करा, एंड यूनिफाइड सिविल सर्विस, द बेडरॉक ऑफ द डेमोक्रेसी, वो भी उन्होंने कर दी, यूनिफाइड सिविल सर्विस भी कर दी। और तीसरी उनकी थी प्रोग्रेसिव एंड प्रॉस्परस, वो लिबर्टी और खजूहट और इक्वालिटी ये सब मिले, ये सब ठीक है होता रहेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी तब सब हो जाएगा। तो उनकी तीसरी ड्रीम थी प्रोग्रेसिव एंड प्रॉस्परस इंडिया। दो तो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में मरने के पहले पूरा कर दिया, चौथी हम लोगों के लिए चाहिए, तीसरी हम लोगों के लिए चाहिए जो हमें पूरा करके अपना वादा हमसे progressive and prosperous India, which may be true if we focus really on skill entrepreneurship. So with this I am closing and inviting for questions, please. आपकी दो सवाल हो, patient listening. फटाफट पूछिए, टाइम कम है, ज़्यादा टाइम ही कम है। आप लोग भी हमको कहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, या रिवर्स में और उसको भी आप तो 14 तक मिलेंगे एक दूसरे से। कंटेंट मैट्रिक्स ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। देखिए तो उस चीज का स्कोप उतना ही ज़्यादा होगा। उदाहरण मैंने दिया ना मेडिकल एजुकेशन का, मेडिकल एजुकेशन की नीड तो क्रिटिकल थी पहले, हाई थी, और लोग जिनका बच्चों का एडमिशन यहाँ नहीं होता था लाखों लाख लगा के चाइना में, यूक्रेन में, रशिया में भेजते थे, है ना, और डिसकंटेंटमेंट लेकिन हाई नहीं था। उनके बच्चे पढ़ पढ़ा के पास होके आ जाते थे, कितनी वर्थ डिग्री ले आते थे अलग बात है, लेकिन MBBS वो हो जाते थे। अब ये जो नया डेवलपमेंट हो गया, everybody will think twice before sending their sons and daughters to फॉरेन कंट्रीज, कोई भी कंट्री, आज यूक्रेन है, चाइना हो सकता है। तो अभी क्या था कि क्रिटिकलिटी तो हाई थी, डिसकंटेंटमेंट हाई नहीं था, अब दोनों हाई हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, अपॉर्चुनिटी टुडे हियर एंड नाउ। आप मेडिकल कॉलेज अगर शुरू करना चाहें तो अभी आप शुरू कर सकते हैं, सरकार सपोर्ट देगी। जितने इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, मोदी हैज द इंटेंट दैट एवरीबॉडी विल वेरी सून स्टार्ट द मेडिकल कॉलेज, और अच्छी भी पहुंच रही है। लड़के बुरी में ज़्यादा कैप्चर हो जाए, क्योंकि अच्छे की तरफ प्रोपेल करने का सिस्टम हमारे पास नहीं है। तो सोसाइटी को कैसे उसके लिए तैयार किया जाए? नहीं तो उसका यही है कि भाई कहीं से शुरुआत तो करिए। आप अगर गांव में रहते हैं तो आप ही शुरू करिए, 2-4 लाइक माइंडेड लोग मिल करके शुरू करें। भाई इंटरनेट का यूज़ क्या है, इसी को गाइड करें। 6-7-8 पढ़ने वाले बच्चों को, बड़े बच्चों को बात करना पड़ता है, 20 के ऊपर के बच्चों को बात करना पड़ता है। कोई आप में हाथ पर, अगर हम चाहते हैं कि आप योगासन करना शुरू करें तो आपसे शुरू करेंगे तो गलत होगा। आप अगर घर में बच्चे हैं छोटे, उनसे शुरू करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जल्दी मिलेगा, है ना। तो वो जो इम्प्रेशनेबल एज जिसको हम बोलते हैं 6-7-8 की, है ना, उसमें हम शुरुआत करें और उनको कहें देखो बेटा राइट यूज़ क्या है इंटरनेट का। इंटरनेट पे सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ एनाटॉमी से देखिए, सब कुछ जो चाहते हो सब है, लेकिन उनको इसका अच्छा यूज़ क्या है, ऐसे से तो इससे शुरुआत होगी। इट विल टेक टाइम, कल्चरल चेंजेस ओवरनाइट कभी नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद ये बहुत सारे बच्चे हैं गांव तो बहुत अच्छी भी बात है, वो इंडस्ट्रियस बहुत है, रिस्क लेने की उनके में क्षमता बहुत है। अगर इंडस्ट्रियस है, उनको सही मोल्ड करेंगे तो 2 डायमेंशन तो एंटरप्रेन्योरशिप को खुद ही फुलफिल कर रहे हैं, रिस्क एंड इनोवेशन, है कि नहीं। गांव वाले इनोवेशन पर सरकार पर डिपेंड नहीं करती, उनके अपने बहुत सारे, आप पढ़े होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन है सृष्टि करके, जो कि चलने लगता है, लेकिन तो उनके पास नॉलेज बहुत है, इनोवेशन बहुत है। उसको जो कमर्शियल वायबल स्केलिंग का इशू है उसमें आप एक्सपर्ट, लेकिन वो तब होगा जब हम उनसे पहले तादाद में स्थापित करें। उनको सीधे ज्ञान देने लगे तो कहें तो पहले हम उनसे तादाद में स्थापित करें, फिर उनको कहें कि इसको ऐसे करो, एंड लेट देम नो, आप इन्फोर्स उनको करके देखते हैं। गाँव वाले बहुत तेज होते हैं, मोबाइल की अभी इनफैक्ट टेक्नोलॉजी हैज ब्रिज्ड द गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन किड्स।
वो वही सब सारे सीरियल देखते हैं, हिंदी में देखते हैं। जो बच्चे कॉन्वेंट वाला अंग्रेजी में देखते हैं, बॉब द बिल्डर, अगड़म बगड़म जो भी, वही सब सीरियल उनको हिंदी में अवेलेबल है, वो हिंदी में देखते हैं। लेकिन कथ्य से सब वाकिफ है, उनको पता है। तो लैंग्वेज इतना बैरियर, उस पर आप हमको रिबेट दे दीजिए, कोई बुरी बात नहीं। चाहे बैंक इंटरेस्ट में, चाहे हमको रिबेट मिल जाए, हम ही दे दें, क्या दिक्कत है? सर गवर्नमेंट अगर लोन भी देती है तो आप लेकिन गवर्नमेंट डिस्ट्रस्ट एक हमारा है, लेकिन सरकार का डिस्ट्रस्ट है। तो अगर ये डिस्ट्रस्ट हट जाएगा, ऐसा मैकेनिज्म आप बना दें, जैसे अभी मैकेनिज्म बना दिया ना पूरा, मतलब लखनऊ से लेकर रायबरेली तक तो मैं देख रहा हूँ पूरी रोड कैमरा मॉनिटर्ड है, पूरी रोड। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया ना कि आप गए कि नहीं गए, हम रोड से आए कि नहीं, रायबरेली रोड से आप 1 मिनट में ट्रेस कर लेंगे हमको, है कि नहीं? ऐसे तो हम झूठ बोल देते कि भाई नहीं आए, आए ट्रेन से क्लेम कर दिए, रोड से क्या बुरा है, कुछ पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन अभी आप देख लीजिए हर टोल पे आप उनको देख लीजिए। तो अगर आप ट्रस्ट के साथ काम शुरू करेंगे तो हो सकता है कि 10-20% इसमें मिसयूज भी हो जाए, लेकिन जो लार्जर गुड है वो इसमें सर्व होता है। हर बाप जिसको कि 30% टैक्स का रिबेट होगा और बच्चा उसका अनएम्प्लॉयड है, अगर आप लिमिट बना दें 2 लाख 3 लाख 4 लाख तो उसको दे देगा हमको 30%, बजाय इसके कि बनिया लोग फर्जी ट्रस्ट खोल करके पैसा लेते हैं, हमको इशू करते हैं 30% रिबेट। सेक्शन कौन सा होता है इनकम टैक्स का भाई? हाँ, जो भी है CCTV, EFGS फर्जी चलता है ना सब, उससे अच्छा दे दीजिए, बच्चे को भी नहीं दौड़ना पड़ेगा, उसके अंदर हीन भावना भी नहीं आएगी और हमको भी राहत मिल जाएगी, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर अभी तो हमें सोचना है क्या मतलब सर बिना गवर्नमेंट के प्रॉपर सपोर्ट के सर क्या मैन्युफैक्चरिंग हब बनना इतना आसान है सर? नहीं, अब तो बिना गवर्नमेंट के नहीं नहीं बनेगा ना, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो सकती है। अब नहीं बनेगा। जैसे हम आपको बताया वो एक कौन सी पिक्चर आई थी, कौन सा गाँव उड़ीसा में, वो गाँव कौन सी पिक्चर आई थी, अजीब सा गाँव का नाम, जब आप पूरी की तरफ जाते हैं तो रोड पे ही गाँव है, वहाँ यही सब काम है, प्रिंटिंग जगन्नाथ जी का, एकदम से नाम नहीं याद आ रहा है कौन सी बड़ी पिपली, हाँ पिपली गाँव। वहाँ हर महिला जो है वो अच्छे पैसे कमाती है इसी काम से, और हमको लिज्जत पापड़ को दोहराने की जरूरत नहीं है। आप जाइए जबलपुर में लिज्जत पापड़ वाला, हर जो बहन वहाँ की है, भाई बहन जो भी वहाँ बोलती हैं, अच्छा पैसा कमाती है, मटीरियल ले जाती है, घर से काम करके पापड़ दे जाती है, और क्वालिटी अपना देख लेते हैं। या गुजरात में दूध से हो जाता है, गवर्नमेंट तो नहीं है लेकिन हब तो बने हुए हैं। छोटे हब तो पूरे भारत में है, छोटे हब तो पूरे भारत में है। हाँ तो भाई जब हर टाउनशिप में इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट कहाँ से काम करेगी? प्रॉस्पेरिटी तो तभी आएगी जब टैक्स देंगे हम, आप और बिजनेस सब मिल करके, एक्टिविटी जनरेट होगी तभी तो टैक्स मिलेगा सरकार को। ये रोड जो बन रही है क्यों बन रही है इतनी? गडकरी अपने पॉकेट से पैसा दे रहे हैं, पेट्रोल को 1 रुपया सेस तो कांग्रेस ने लगाया था भाई। यू हैव अबंडेंस ऑफ मनी विच इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड, पैसा पड़ा हुआ है, हर लीटर जो आप लेते हो उसमें 1 रुपया पेट्रोल के लिए जाता है, और प्लस जो टोल अलग लगा देते हैं, मैं लखनऊ आया तो 600 रुपया टोल। तो यू हैव टू जनरेट मनी, तब जनरेट होगी जब इस पर ट्रक्स चलेंगे। ये सब इक्वल इंटरडिपेंडेंस है, लेकिन खाली गवर्नमेंट को उसको खाली गवर्नमेंट कर देगी। नहीं सर, सपोर्ट की बात मतलब हाँ, बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं है। हम चाहे जितनी एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लें, अगर गवर्नमेंट इनिशियल स्टेज पर लोगों को पैसा नहीं देगी तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे सर? सिर्फ गार्डियन पैसा दे दें कुछ और वो आगे बढ़ जाए, इसमें थोड़ा हमारा आइडियोलॉजी आ जाए। नहीं इसमें थोड़ा हमारा डिफरेंस देखिए, जो रिसोर्सेज हैं उसमें फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। विदाउट फाइनेंस कहाँ कुछ पॉसिबल है भारत इसमें वही तो मैनेजमेंट। लेकिन जो लोग नीड बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते जी हैं, ठेला लगाना चाहते हैं, एक सब्जी वाला है उनको पैसा गवर्नमेंट से होना चाहिए, एक सब्जी वाला है वो एक किसी प्राइवेट फाइनेंसर से 1000 रुपया रोज लेके जाता है, दिन भर सब्जी से सब्जी लाता है, वो दिन भर सब्जी बेचता है, रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शाम को 1100 रुपया उसको वापस करता है, 2 किलो आलू बेगारी में देता है, 1000 का 1100 देता है, कितना इंटरेस्ट हुआ 2 महीने, और वो रोज देता है ईमानदारी से। हियर द गवर्नमेंट हैज टू चिप इन। ऐसे जो केसेस हैं
जो कि अपने उद्यम पर भरोसा रखते हैं, उनको सरकार को जो कि आपकी मुद्रा योजना जैसे सर, महिलाओं के गवर्नमेंट लिए ने उसी तरह से 2 लाख 3 लाख तक आप बिना किसी गारंटी के दीजिए, उसमें सरकार गरीब नहीं होने वाली। 10 लाख तक देने की बात तो करते हैं सर, पर वहाँ पे गारंटी मांगते हैं। नहीं, वो आम आदमी गारंटी कहाँ से देगा सर? नहीं वो गारंटी नहीं, वो गलत है। स्कीम है उनकी जिसको हम कहते हैं GICDC, जनरल इंश्योरेंस कवर अप टू 5 लाख। वो इंश्योर्ड है, अगर किस्त बैंक की नहीं आएगी तो GICDC उसको पे करेगी। लेकिन सवाल ये है कि पूरे सिस्टम में जो चोरी सपोर्ट नहीं करते, वो सोचते हैं वो अलग बात है कि मैनेजर कहेगा कि भाई अगर 2 लाख का लोन दे रहा हूँ, अदरवाइज जो बंदा अपने पुरुषार्थ से 1000 रुपया रोज लेता है, शाम को 1100 वापस करता है, 2 किलो आलू भी देता है, अगर उसको बैंक महीने का 20,000 रुपया दे दे तो दुनिया को इधर से उधर कर देगा। सब बैंक, लेकिन वो बैंक का पैसा वापस नहीं करेगा ना। और बैंक ने दिया पैसा सारा वापस नहीं करेगा। लेकिन लेफ्टिस्ट एकदम गलत नहीं, सारा पैसा बैंक ने दिया बड़े बड़े को जो कि फंस गए। हाँ सर यही बात है। और जो ठेले वाले को पैसा देना है 2 लाख विश्वास बैंक नहीं उसमें करता। दुनिया भर का उनको पहुंचे। शायद यही अनसर्टेनिटी ही शायद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में बाधा करता है। आप बहुत सारे तो बहुत सारे हैं। हैं। हो सकता है जी। थैंक यू सर। हाँ मैडम आप सर मेरी देखिए कोई family मुंह रहा है में- हमसे थैंक यू कह रहा है, किसी का खाने को भूख लग गई है। मेरी फैमिली में एक इस बिजनेस क्वेश्चन चल के रहा था लिए- हैंडलूम साड़ीज का कहाँ किस बनारस में। जी जी तो वहाँ पे जो है लगभग 10 इयर्स तक जो है वो चला बिजनेस, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों ने लास्ट में ये पाया कि इट हैज़ टू बी शट डाउन और वो बंद हो गया। एट प्रेजेंट हम लोग उसको देख रहे हैं। तो उस समय भी एक क्राइसिस आई थी, इससे पहले वाले जो 90s के आसपास जो क्राइसिस आई थी, उसके बाद दोबारा रिवाइव करने के लिए हम लोग को सोचा, लेकिन वो लॉस इतना ज़्यादा था कि हम उसे नहीं कर सकते, और बीच में गवर्नमेंट के डिसीजंस भी जो है नहीं आ रहे थे इस सिचुएशन में, तो कुछ भी नहीं हो सकता था। कोई अपनी रिस्क पे करना नहीं समझता था। हम आपकी बात से ये सहमत हैं कि गवर्नमेंट का जो इकोसिस्टम है वो बिजनेस के सपोर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन करने वाला है, कदम कदम फ्रिक्शन करता है, और जब सपोर्ट वो देता है दैट इज टू लिटिल टू लेट। जब आप यूनिट को मॉनिटर करना पहले बार डिफॉल्ट हुआ, तभी आप उससे इंटीग्रली जुड़िए क्या दिक्कत है और क्या हम कर सकते हैं, और करिए तो करने लायक करिए, बिजनेस उभरेगा तभी तो। एक आदमी डूब रहा है तो दूसरा आदमी उसको बचाने जाएगा तो क्या होगा, दोनों डूब जाएंगे। दैट इज द पॉइंट। तो बैंक भी डूब रहा है और इंडस्ट्री भी डूब रही है, तो वो मेथड आप निकालिए, वो रस्सी निकालिए जिसको पकड़ करके आप खींच सके और वो किनारे पे ला सके। और फाइनेंस जहाँ पे बिजनेस का थोड़ा लेवल बढ़ जाता है वहाँ पे आइडिया का इंपॉर्टेंस है फाइनेंस का। जितने रिटायर्ड मिलिट्री वाले हैं सब बैठे हुए, कोई अच्छा आइडिया मिल जाए तो हम फाइनेंस करें। ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल सब पैसा अच्छा फंड लेके रिटायर हुए, 7% कोई नहीं रखना चाहता, शेयर मार्केट में लगाना है किसी कोई सेज में जुड़ता नहीं है, तो सब खोज रहे हैं कोई प्रॉमिसिंग अच्छा से। और क्योंकि जहाँ इकोसिस्टम है बैंगलोर वगैरह में, वहाँ पे ऐसे वेंचर्स प्रॉस्पर कर। हमारे यहाँ इकोसिस्टम नहीं है, विश्वास नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर दे भी देंगे जिन्होंने दिया भी तो उनका डूबा ही है, तो हिस्ट्री भी अदरवाइज है। तो यूपी में ये चीज काफी हाँ, ज्यादा यूपी देखी बिहार दो जगह दोनों बहुत है। जगह पे ये चीज आप राजस्थान में देखो, अगर आपके परिवार में एक सर्विस वाला है और 2 बिजनेस वाले हैं, तो सर्विस वाले का फंड का पैसा वो खुद ही ले लेते हैं। आप रिटायर हुए 1 करोड़ रुपये आपको मिला तो कहें हमको दे दीजिए, चूंकि वहाँ इकोसिस्टम है, ट्रस्ट है, तो 50 लाख तुम ले लो, 50 लाख तुम ले लो। क्या दोगे ये भी पहले से तय है, भाई हमको 15% रिटर्न दोगे, हाँ ठीक है 15%। कहीं रखेगा तो 7 ही 8-10 मिलेगा ना मैक्सिमम, म्यूचुअल फंड में भी लगाएंगे 10 ही मिलेगा, वो तो 15% दे रहा है और आप ही के पैसे से घर का बिजनेस भी बढ़ रहा है, तो वो चीज़ इकोसिस्टम से हो रहा है। और कोई बात भाई, और कोई सवाल हो तो हम आखिरी सवाल एक ले लें किसी का। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर सेशन होता है कि खाना अभी हम लोगों ने डिस्कस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एम्प्लॉयबिलिटी पे बहुत अच्छा लेक्चर था। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लेक्चर हमने सुना आपकी बात सर। लेकिन ये जो अभी हम लोग
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिजर्व एक्शन की बात कर रहे हैं, तो नीड तो हमारी ये दिख रही है और बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि जो मेन चीज़ है प्रॉस्पेरिटी एंड जो प्रोग्रेस वो उसी से आएगा। तो किस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि सर बिल्डिंग अप तो स्टार्टिंग से होना है ना, तो किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने उससे इसके लिए कुछ किया है, कुछ ऐसा प्रोविजन है सिर्फ वो कैरिकुलम कोर्स के थ्रू क्या हाँ, अचीव किया, करने किया, जी। नहीं, उसके थ्रू करेंगे नहीं। एक तो देखिए इसके दो आंसर, एक ईमानदारी वाला आंसर है जो मैं बाद में दूंगा, और इनफॉर्मली दूंगा, तो वो फॉर्मल प्लेटफॉर्म का आंसर है। मुझे पता नहीं मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, तो वो आंसर मैं ना दूं तो अच्छा है। ये रिकॉर्डेड वाला लेकिन इसका फायदा ये होना चाहिए, इसको आप लेक्चर मत कहिए, हम अपने ही भाइयों को बहनों को लेक्चर देने नहीं, ये शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, कुछ हमने दिया कुछ आपसे। जैसे इन्होंने अपनी बात कही लेकिन पूरा कहने पे संतुष्ट नहीं थे हमारी बात से, तो कभी टाइम मिलेगा तो मिलेगा तो, बिकॉज ही हैज हिज ओन आइडियाज दैट नीड्स टू बी कन्विंस्ड फर्दर। सब आप सबके दिमाग में है, ऐसा नहीं, वो चेहरे से पता चलता है ना, ऐसा नहीं। तो एक तो ये शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस है, और इस तरह के प्रोग्राम का ये फायदा है कि हो सकता है कि आप याद करें कि हाँ एक लेक्चर कुछ ठीक था, कुछ किताब की बात नहीं, कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग की बात थी, और हम लोगों को भी अपने बच्चे या बच्चियों को ये चीज़ इंकरेज करनी चाहिए। महल्ले में कोई लड़की अगर स्ट्रगल कर रही है अर्निंग के लिए, कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहती है, मैं तो टोटो का एग्जाम्पल दे दिया, बनारस में मैं बहुतों को इंकरेज करके चलवा रहा हूँ, चलाते हैं बच्चे टोटो चलाते हैं बस। तो हम लोग कुछ अगर कर सकते हैं एटलीस्ट उनको इंकरेज, वी कैन पैड देम कि हाँ ठीक है बेटा इसमें कुछ नहीं, कमा के खाने में कोई हर्ज नहीं, कोई बुरी ऐसी बात। और दूसरा जो कि ये बंद करेंगे तो मैं शेयर करूँगा, ये गवर्नमेंट स्कीम्स की प्रॉब्लम बता दिया डायरेक्टर साहब ने कि रूसा में फंड मिला है इस काम ऐसे ही गवर्नमेंट बहुत सारे मिसमैनेज करती है, फंड वहाँ देती है जहाँ ठीक यूटिलाइज नहीं होता, जहाँ यूटिलाइज हो सकता है। मैंने कहा ना कि हर ठेले वाले को आप 10,000 रुपये हर महीने दे दीजिए, आपका एक पैसा नहीं डूबेगा, जो कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस ने किया और वो रिकॉर्ड है, एक भी पैसा नहीं डूबा और ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट पूरा खड़ा हो गया।